which are distinguishedly been used in the chemistry laboratory, which may or may not be same like that of the biological laboratory apparatus. But the main thing is that before the students proceed towards the practicals in the chemistry laboratory, they must be aware about all the basic things about the apparatus, instrument, chemicals. They have the complete knowledge. So every student before entering in the chemical laboratory must be aware about all the safety measures which must be taken in the chemistry laboratory, because there may occur some mistaken, there may occur some incidents, there may occur some incidents, accidents due to the fire, due to the chemical burn. So all the students must be aware about all the safety measures. They must have all the knowledge about all kind of apparatus, instruments, all type of chemicals. All the students keep in mind that they must wear fully covered shoes and never use the sandals or the slippers in the laboratory. Next, all the students must have to wear the safety goggles, because these safety goggles protects your eyes, because there are some chemicals, some fumes may cause the irritation in your eyes, or sometimes it is to be found that even the NaOH, which is the sodium hydroxide, which whose vapors sometimes may get deposited in such a way on the surface of the cornea that you may lose your sight. There are some other chemicals which are very harmful, like the benzoyl chloride, the bromine, whose vapors are highly dangerous. So you must always come in lab with your safety goggles. You must have an lab apron, because the chemicals, when you enter in the chemistry laboratory, there may be the different type of chemicals which may split on your clothes. Once the chemicals split on your clothes, these clothes you can never be wear again, because their life will expire. उनकी जो life है वो बेटा expire हो जाएगी. So always keep in mind, always come in lab with the lab apron. These lab apron are play the same role like that of the safety goggles. Safety goggles protect your eyes. The lab apron protect the remaining body parts. You must always have the latex gloves during the preparation, during the handling of the chemicals or the acid or any other solutions which may direct or indirect may burn your skin, जो आपकी skin को burn कर सकते हैं. But whenever you will enter in the chemistry laboratory, you will find that at the entrance there will be an fire extinguisher. जब भी आप केमिस्ट्री लेबोरेटरी के अंदर एंटर करते हैं तो उसके आउटर गेट के ऊपर आप देखेंगे, या उसके अंदर गेट से जस्ट अंदर आप देखना वॉल के ऊपर, यू विल फाइंड दैट देयर विल बी द फायर एक्सटिंग्विशर. वहां पे एक फायर एक्सटिंग्विशर होगा, विच इज द नेसेसरी कंडीशन फॉर एनी लेबोरेटरी, फॉर एनी ऑफ द बिल्डिंग. जो भी हमारी बिल्डिंग है, गवर्नमेंट की इंस्ट्रक्शन है, एवरी बिल्डिंग मस्ट हैव द फायर एक्सटिंग्विशर एट द डिफरेंट फ्लोर्स at some particular spots. So here is the fire extinguisher. Though here you can see in the person hand there is the fire extinguisher. Fire extinguisher releases the gas, that is the CO2 here, which acts as the fire extinguisher, जो आग को बुझाने में हेल्पफुल होती है. वो गैस प्रोड्यूस होती है. We add some chemicals in that fire extinguisher whenever required. When there is a plug, जब हम उस प्लग को खोलते हैं, there occurs the vigorous reaction, एकदम उसमें रिएक्शन हो जाती है, instantly the gas will produce, और वो गैस फिर आपके जो फायर है उसको एक्सटिंग्विश करने में हेल्पफुल होती है. In the laboratory you will find the sand bath. You will find a bucket with a sand. जो सिंपल हमने यहाँ पे रेत दिखाया है, मिट्टी दिखाई है, बट यू मे ऑल्सो हैव द सैंड, जो आप अपने घर में
कोई बिल्डिंग के बनाने में जो यूज होती है, दैट इज द सैंड दैट मस्ट बी प्रेजेंट इन द लेबोरेटरी इन ए पर्टिकुलर बकेट विच कैन बी यूज्ड टू डिस्टिंग्विश द फायर। कहीं पे आग लग गई तो आप जो सैंड है वो उसके ऊपर डालते हैं आग को बुझाने के लिए। दैट पर्टिकुलर next diagram that here is, that is the sand bath. During the heating of the some of the chemicals in the beaker or in the conical flask or in the round bottom flask, we have the requirement of that bath, which is called as a sand bath, because the heating of different reactants occur under the different condition, under the different condition of temperature, and that particular temperature may be obtained by either by using the sand bath। जैसे अभी अपने देखो ये कंटेनर है जिसमें नीचे से इलेक्ट्रिकली हम इसको हीट करेंगे, और हीट जब करेंगे तो जो ये सैंड हमने यहाँ पे ले रखी है, जो सैंड है दैट गेट हीटेड अप, और उस सैंड जो हीट हुई, उस सैंड के थ्रू जो हीट मिलेगी अपने इन एपरेटस के अंदर जो रिएक्टेंट है उनको, और नाउ द रिएक्शन विल अकर, नाउ द हीटिंग दैट कॉल्ड द हीटिंग थ्रू द सैंड बाथ। नेक्स्ट दैट हेयर इज द वाटर बाथ। ये जो डायग्राम आपको दिख रहा है दैट इज द वाटर बाथ। इसके अंदर जैसे घर में आप वाटर को हीट करते हैं, सिमिलरली हेयर द इलेक्ट्रिकल वाटर बाथ इज, इट हैज डिफरेंट पॉइंट्स। देखो इसके अंदर आपको डिफरेंट ये पॉइंट्स दिख रहे हैं, ये डिफरेंट पॉइंट्स हैं। इसके अंदर आपको क्या दिखाई दिया, इनके अंदर जो होल्स हैं इनको आप कवर को ऊपर से हटा देंगे और यहाँ पे आप अपना कंटेनर रख देंगे। इट में भी द वाटर बाथ, इट में भी द कॉनिकल फ्लास्क। जैसे आपको यहाँ पे वाटर बाथ दिख रहा है, देखो ये यहाँ पे हमने रख रखा है। नीचे से आप इलेक्ट्रिक प्लग, जब इलेक्ट्रिसिटी आप सप्लाई करेंगे द वाटर गेट हीटेड अप, और वाटर जब हीट होगा तो वहां से स्टीम प्रोड्यूस होगी। तो बॉइल्ड वाटर के थ्रू हीट देना रिएक्टेंट्स को, now that is called the purpose of the water bath, heating of the reactant through the water bath, not by the direct flaming here। हम डायरेक्ट फ्लेम यूज नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। प्रीवियस केस में आपने देखा आपने सैंड बाथ यूज किया था। अगर आप सैंड ले लें, अगर वाटर ले लेते हैं, दैट कॉल्ड द वाटर बाथ, और अगर दैट इज कॉल्ड एज अ आइस बाथ। कई बार हमें जो हमारे रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको हमें कूल करना पड़ता है, क्योंकि बिकॉज द रिएक्शन इज सो मच विग्रस, वेपर्स इतने ज्यादा डेंजरस निकल जाते हैं उस प्रोसेस के दौरान कई बार, कि हमें क्या करना पड़ जाता है, हमें आइस यूज करनी पड़ जाती है। नाउ दैट हियर इज द कंटेनर विच कंटेन आइस इन विच वी हैव प्लेस्ड दैट कोनिकल फ्लास्क। हमने कोनिकल फ्लास्क इसमें रख दी है, तो नाउ द डेंजरस वेपर्स विल नॉट बी कम आउट, वो बाहर आपके नहीं आएंगे, और इस टाइप से आपकी जो रिएक्शन है वो इजीली अच्छे से चलेगी। So that is the ice bath. Now that here is the oil bath. Similarly, in that particular container we have taken the oil। जब हम ऑयल को हीट अप करेंगे तो ऑयल के थ्रू हीट मिलेगी इस राउंड बॉटम फ्लास्क के अंदर जो रिएक्टेंट है उनको, मींस नाउ द हीटिंग थ्रू द ऑयल बाथ। If you take the sand in it, that called the sand bath. If you take water in it, then it is called the water bath. If you take oil in it, it is called as the oil bath। Now here the next appliance, that is the heating mantle। हीटिंग मेंटल के अंदर आपके जो यहाँ पे स्पेस है, आप यहाँ पे क्या करेंगे, यू विल प्लेस हेयर द योर कंटेनर। जैसे आपने यहाँ पे देखो प्लेस करके, दैट इज द हीटिंग मेंटल हेयर। और जब आप ये इलेक्ट्रिक सप्लाई करेंगे तो नीचे से हीट आएगी, हीट के थ्रू यानी जो भी रिएक्शन है वो पर्टिकुलर रिएक्शन पर्टिकुलर टेम्परेचर पे चलेगी। और जो ऊपर ये कॉनिकल फ्लास्क है, इसके ऊपर जो हमने ये लगा रखा है दैट इज द कंडेंसर, दैट इज कॉल्ड एज द कंडेंसर बेटा। दैट एपरेटस, दैट गिलास एपरेटस इज कॉल्ड एज द कंडेंसर। इसे कंडेंसर कहते हैं। इसमें हमेशा ही देखो जो नीचे आपने ये रबर ट्यूब दिखा रखी है, इस रबर ट्यूब के थ्रू नीचे से वाटर एंटर करते हैं। अगर हम देखो वाटर एंटर ना करें, नाउ इट इज कॉल्ड एज द एयर कंडेंसर। इफ यू रन द वाटर सप्लाई, वाटर की सप्लाई अगर हम इसमें डाल दें, नीचे से एंटर करेगा और ये ऊपर से बाहर निकलता चला जाएगा। मीन जब भी जो रिएक्टेंट होंगे इनके, ताकि वो लॉस ना हो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स के अमाउंट में, जैसे ही रिएक्टेंट को हमने नीचे से हीट किया उनके वेपर्स बने, वेपर जैसे ही वो ऊपर तक जा रहे थे अपने आप कूल अप होके नीचे भी आएंगे, कंडेंसेशन प्रोसेस चलेगी। लेकिन उस कंडेंसेशन को और भी अच्छे से चलाने के लिए हम यूज करते हैं वाटर बाथ, क्योंकि वाटर की सप्लाई आउटर जैकेट में होती रहेगी। बेटा ये ध्यान रखें कि जो ये वेपर्स जाएंगे बीच में, एक ये देखो ये नैरो ट्यूब है, इस नैरो ट्यूब के थ्रू देखो वेपर्स ऐसे जाके बाहर निकल जाते हैं। लेकिन इस नैरो जो ट्यूब है उसके बाहर आउटर जैकेट है, उसका इनर ट्यूब के साथ कोई कनेक्शन नहीं। वाटर जब यहां से एंटर करेगा, आउटर जैकेट में घूमेगा, वो सारी की सारी जो हीट है, जो एनर्जी है, उन वेपर्स की ले लेगा और वाटर हीट अप होके बाहर निकलेगा। एंड दिस वेपर्स अगेन गेट कंडेंस एंड अगेन फॉल डाउन
इन द एपरेटस, जो भी एपरेटस हमने लिया नीचे, चाहे राउंड बॉटम फ्लास्क हो, चाहे कॉनिकल फ्लास्क हो, वट एवर में बी द नेचर ऑफ द एपरेटस, उसके अंदर दोबारा कंडेंस होकर रिएक्टेंट मॉलिक्यूल इसमें लगातार गिरते रहेंगे, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल का लॉस नहीं होगा। सो दैट इज द नेक्स्ट हीटिंग अप्लायंस। हीटिंग हम कैसे कैसे करते हैं, हम हीटिंग अप्लायंस के बारे में आपको बता रहे हैं। द हीटिंग में अकर थ्रू द सैंड बाथ, द हीटिंग में अकर थ्रू द वाटर बाथ, द हीटिंग में अकर थ्रू द ऑयल बाथ, द हीटिंग में अकर थ्रू दैट हीटिंग मेंटल, और यू मे डायरेक्टली हीट ऑन द बर्नर, आप बर्नर के ऊपर भी डायरेक्ट हीटिंग कर सकते हैं। बट ऑलवेज कीप इन माइंड ड्यूरिंग द हीटिंग, यू कैन सी हियर, देखो ये राउंड बॉटम फ्लास्क है, इसमें जब भी आप हीट करें, हीटिंग के दौरान यू विल ऑलवेज एड द स्मॉल 1 or 2 पीस ऑफ दीज बॉइलिंग चिप्स। देखो ये बॉइलिंग चिप्स है। बॉइलिंग चिप्स क्या करती हैं, जो जब आप नीचे से हीटअप करते हैं, मान लीजिए आप डायरेक्ट यहाँ पे बर्नर जब लगा देते हैं मेनली, या आप वाटर बाथ जब यूज करें, तो बॉइलिंग चिप्स किस लिए डालते हैं, टू इंक्रीज द सरफेस एरिया। बॉइलिंग चिप्स क्या करती है, जो एक्सेस ऑफ जो हीट है, जब आप नीचे से हीट करते हैं, जो एक्सेस एनर्जी को ये एब्जॉर्ब कर लेती है, जिससे कई बार आपने देखा होगा राउंड बॉटम फ्लास्क के अंदर जो आपके रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स हैं जो लिक्विड फॉर्म के अंदर, देखो वो ऐसे बंपिंग होती रहती है, ऐसे उछलते रहते हैं। ताकि वो बंपिंग ना हो, उस बंपिंग को अवॉइड करने के लिए हम बॉइलिंग चिप्स डालते हैं। दीज बॉइलिंग चिप्स आर जनरली ऑफ चाइना क्ले। जैसे अगर मान लीजिए आप कहेंगे सर चाइना क्ले कहाँ से लाए, आपके लेबोरेटरी के अंदर कोई भी जो ओल्ड पुरानी चाइना डिश जो होती है, जो कटोरी जैसी आपको दिखती है चाइना क्ले की बनी हुई थी, दैट इज कॉल्ड एज द चाइना डिश। उस चाइना डिश को, टूटी हुई चाइना डिश का कोई छोटा सा पीस आप लेके इस राउंड बॉटम फ्लास्क के अंदर डाल दें, दैट स्मॉल पीस ऑफ द ब्रोकन चाइना डिश, दैट इज द बॉइलिंग चिप्स। वो बॉइलिंग चिप्स का काम करता है, वो एक्सेस ऑफ हीट को एब्जॉर्ब कर लेगा। सो दैट इज द पर्पज ऑफ बॉइलिंग चिप्स, ताकि बंपिंग को रोकने के लिए काम आता है ये। नेक्स्ट जो हम आपको यहाँ पे बता रहे थे, बंसन बर्नर के द्वारा भी आप डायरेक्ट हीटिंग कर सकते हैं। यू कैन सी हेयर कि वी आर हीटिंग हेयर द एनी ऑफ द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल विच आर प्रेजेंट इन दैट टेस्ट ट्यूब। देखो ये हमने ऑन किया नीचे, तो इस टाइप से आप यूज कर सकते हैं। आपका जो बर्नर आप डिफरेंट वे में यूज करते हैं, जैसे आपने यहाँ पे देखा कोई सब्सटेंस है, देखो यहाँ पे येलो फ्लेम आ रहा है। येलो फ्लेम कब, जब आपने सोडियम के पीस को मान लीजिए आपने हीट अप कर दिया, मींस द डिफरेंट सब्सटेंस विच ऑन हीटिंग गिव्स द डिफरेंट कलर इन द फ्लेम। फ्लेम के अंदर डिफरेंट कलर देते हैं। जैसे कैल्शियम वाले सब्सटेंस को लेके आप हीट करते हैं तो इट विल गिव द ब्रिक रेड कलर। आप बेरियम को ले लें, ग्रासी ग्रीन कलर की फ्लेम आ जाएगी। तो दैट इज द पर्पज ऑफ द बंसन बर्नर, इसको आप हीटिंग के लिए यूज करते हैं। आपने यहाँ पे देखा जब आप हीटिंग कर रहे थे, तो नीचे जो हमने ये ले रखा है, दैट इज हेयर द क्रूसिबल। देखो ये क्रूसिबल ले रखी है, देखो ये क्रूसिबल है हमारे पास। कई सब्सटेंस ऐसे होते हैं, उनको जब आप एसिड बेसिक रेडिकल की डिटेक्शन करते हैं, तो उसके दौरान हमें उसको फाइनली हीट करना पड़ता है एट द वेरी हाई टेम्परेचर। तो हम क्रूसिबल के अंदर उस सब्सटेंस को डाल के हीट करते हैं, जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा है। सो हेयर इज द क्रूसिबल। तो बेटा ये यहाँ पे क्या है आपके पास, से क्रूसिबल है। So that is the crucible. It is generally been used during the heating at a very high temperature, because these crucible can withstand the high amount of heat. They can withstand the very high temperature. So that is the purpose of the crucible. These are generally being used during the high temperature required, when the high temperature is required during the heating. तो हीटिंग के दौरान जब हमें हाई टेम्परेचर चाहिए, जब हमें किसी रिएक्टेंट को वेरी हाई टेम्परेचर पर हीट करना हो, तो जनरली देन वी विल यूज दीज क्रूसिबल्स। आप नेक्स्ट में भी देख रहे हैं कि हमने देखो क्रूसिबल को ले रखा है यहाँ पे, और हाई टेम्परेचर के ऊपर हम हीट कर रहे हैं, और दैट हेयर इज द ट्राइपोड स्टैंड। आप ध्यान रखिए बेटा, नीचे दैट इज द बर्नर, नाउ देर इज द ट्राइपोड स्टैंड। देखो दैट इज द ट्राइपोड स्टैंड ऑन विच वी हैव द क्रूसिबल। और देखो ये जो आपने दिख रखा है ना, ये दैट इज ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस। जो ट्रेंगुलर पोर्ड जो हमने बना रखा है, दैट ट्रेंगुलर पोर्ड, दैट मटेरियल इज ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस। नेक्स्ट, हीटिंग ऑफ द फ्यूजन ट्यूब। देखो जो आपकी फ्यूजन ट्यूब जब आप डिटेक्शन करते हैं एक्सपेरिमेंट की, उसके दौरान भी बेटा आप क्या करते हैं, आप फ्यूजन ट्यूब्स को लेते हैं, उसमें सोडियम पीस डालते हैं, फिर आप ऐसे स्ट्रॉन्ग हीटिंग करते हैं। स्ट्रॉन्ग हीटिंग, आफ्टर द स्ट्रॉन्ग हीटिंग, व्हेन यू गेट द रेड हीट, आपकी जो रेड हीट हो जाए बिल्कुल, आपकी जो फ्यूजन ट्यूब है बिल्कुल रेड हो जाती है, देन यू विल ऐड इनटू इट ए स्मॉल अमाउंट ऑफ द कंपाउंड। जब सोडियम आपका मेल्ट हो जाता है, तो देन यू विल ऐड द ऑर्गेनिक कंपाउंड इन इट, अगेन हीट इट टू द रेड हॉट, जब तक बिल्कुल रेड ना हो जाए। आफ्टर दैट यू विल ऐड दैट
particular fusion tube in that China dish having the water. चाइना डिश के अंदर आप डालते हैं जिसके अंदर पहले से वाटर होगा। और चाइना डिश को बेटा आप ये जरूर ध्यान रखें, आप इसको कवर जरूर कर देते हैं उस टाइम पे विद द, यू विल कवर इट विद वायर गाज। वायर गाज के ऊपर भी बेटा जो कोटिंग होती है दैट इज ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस, वो प्लास्टर ऑफ पेरिस की होती है, दैट इज कॉल्ड द टोंग। विद द हेल्प ऑफ द टोंग यू विल you will always use the tongue. You will never directly touch these China clay, China dish. आप इनको डायरेक्टली कभी भी बेटा हीट मत करना, बर्न हो जाएगा। यानी सेफ्टी जितने भी चीजें हैं उनको आपको ध्यान रखना है। ये नहीं कि आप डायरेक्ट जल्दबाजी में आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं और एकदम आप उसको टच कर देंगे। नो, आपको इन चीजों का बेटा ध्यान रखना है। नेक्स्ट टाइप ऑफ ट्यूब्स दिस कॉल्ड एज द कैपिलरी ट्यूब्स। देखो बेटा ये कैपिलरी ट्यूब्स है, ऑल आर कैपिलरी ट्यूब्स। कैपिलरी ट्यूब आप कहाँ कहाँ यूज करते हैं? कैपिलरी ट्यूब जनरली बीन यूज्ड during the melting to determine the melting point of any of the substance, boiling point of the any of the substance, during the thin layer chromatography, paper chromatography के दौरान भी आप इनको यूज करते हैं। तो ड्यूरिंग द मेल्टिंग, ड्यूरिंग द डिटर्मिनेशन ऑफ द मेल्टिंग पॉइंट, आपको जो कैपिलरी ट्यूब है इसके वन एंड को आपको क्लोज करना पड़ता है। यू हैव टू क्लोज वन एंड ऑफ द कैपिलरी ट्यूब, क्योंकि आपको उसके अंदर जो पाउडर्ड कंपाउंड है जिसका मेल्टिंग पॉइंट आपको डिटरमाइन करना, आपको उसको इसमें फिल अप करना होता है। फॉर दैट पर्पज यू विल रोटेट, यू विल कंटिन्यूअसली रोटेटिंग, जैसे आपको दिख रहा है यहाँ पे हैंड के अंदर, देखो ये आपके कैपिलरी ट्यूब है। अब इसको कंटिन्यूअसली रोटेट करते रहेंगे और एक एंड धीरे धीरे क्या हो जाएगा, आपका क्लोज हो जाएगा कैपिलरी ट्यूब का। क्लियर हो गया बेटा? जब वन एंड क्लोज हो जाए तो फिर उसके अंदर देखो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि हम ये कंपाउंड बेटा क्या कर रहे हैं, ये पाउडर फॉर्म के अंदर कंपाउंड है। ये पाउडर फॉर्म कैसे किया? इस पिस्टल मोर्टार को यूज करते हैं। देखो दैट इज कॉल्ड एज द पिस्टल मोर्टार। फिर अपनी कंपाउंड इसमें देखो फिलअप करेंगे, कंटिन्यूस टैपिंग, ऐसे टैप करते रहेंगे, जैसे ऐसे ऐसे टैप आप करते रहेंगे और कंपाउंड इसमें फिलअप कर देंगे 2 to 3 mm के हाइट तक। सो दैट इज अ फिलिंग ऑफ द कंपाउंड इन द capillary tube which already been closed from one of the end for the determination of the melting point. अब आप बेटा यहाँ पे देखेंगे कि किस टाइप से हम इसको यूज करेंगे। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि देखो आप टैप करते चले जाएंगे, देखो आप कंटिन्यूअसली रिवॉल्व करेंगे, टैप करेंगे और इस टाइप से जो एक एंड है इसका बेटा वो क्लोज हो जाएगा। क्लोज करने के बाद जो पाउडर्ड आपके पास देखो कंपाउंड है, देखो पाउडर्ड कंपाउंड, वो आप इसमें फिलअप करेंगे और टैप करते चले जाएंगे बेटा। देखो साथ के साथ आप टैप करते चले जाएंगे, आप फिलअप करेंगे, आप इसको टैप करेंगे। इसके बाद आप क्या करेंगे, आपके पास देखो एक कंपाउंड फिलअप हो गया। नाउ टैग दैट कैपिलरी ट्यूब विद द थर्मोमीटर in such a way that the bulb of the thermometer half at the half mark portion of the bulb of the thermometer, the lower portion of the capillary tube must be there, वो यहाँ पे होना चाहिए। now place now place the thermometer having the capillary tube at the bottom end in the Thiel's tube, beta, that is called as the Thiel's tube, in which you have already been filled the paraffin या और द कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। हम इसमें पैराफिन भी यूज करते हैं और सल्फ्यूरिक एसिड भी यूज कर सकते हैं, लेकिन सल्फ्यूरिक एसिड इफ द दैट पर्टिकुलर थिल्स ट्यूब गेट ब्रोकन तो इट मे बी डेंजरस फॉर अस, तो इसलिए जनरली हम सल्फ्यूरिक एसिड ऐड नहीं करते, लेकिन उससे भी हम कर लेते हैं। फिर जो इसका ये बेंट एंड है यहां से हम हीट करेंगे ताकि जो हीट है, जो ये पार्टिकल्स देखो हीट करके देखो ये मूव करेंगे, इस टाइप से कंटिन्यूअसली मूवमेंट होगी। देखो यहाँ से हीटिंग की, और जो कूलर जो है आपका पैराफिन वो आपके हीटिंग एंड की तरफ आता चला जाएगा और हीट वाला जाके दूसरे एंड के पास चला जाएगा। तो इस टाइप से टू मेक द यूनिफॉर्म हीटिंग हम डायरेक्ट हीट नहीं करते इसके बॉटम से। आपने देखा बेटा थिल्स ट्यूब के क्या बॉटम से हम हीट करें? नो, हम साइड से एंड करते हैं। जो इसकी आर्म है, थिल्स ट्यूब की जो आर्म है वहीं से आप इसको हीट करेंगे। ये चीज आपको ध्यान रखनी बेटा, फ्रॉम द आर्म।
तो जैसे ही आप इसको हीटअप करते रहेंगे, जो इसके अंदर जब भी हीट मिलेगी तो उसके बाद क्या होगा, जो कंपाउंड है इसके अंदर जो हमने कंपाउंड ले रखा है वो आपका क्या हो जाएगा, स्टार्ट मेल्टिंग। और उस टेम्परेचर को आप क्या कर लेंगे बेटा, नोट डाउन, यू विल नोट डाउन दैट पर्टिकुलर टेम्परेचर। आप उस टेम्परेचर को क्या कर लेंगे, नोट डाउन कर लेंगे। तो कंटिन्यू हीटिंग टिल द सब्सटेंस रिमेन इन द फॉर्म ऑफ द सॉलिड स्टेट। जब तक वो सॉलिड स्टेट में रहता है आप उसको कंटिन्यू हीट करते रहें। आपकी पूरा ध्यान यहीं पे रहना चाहिए, और टेम्परेचर के ऊपर भी आपका पूरा ध्यान रहना चाहिए, थर्मोमीटर के ऊपर भी, कि थर्मोमीटर के अंदर आपको एकदम से टेम्परेचर भी नोट डाउन करना है। स्टार्ट मेल्टिंग, टेम्परेचर नोट डाउन कर लेंगे, कंप्लीटली मेल्ट तो टेम्परेचर नोट डाउन कर लेंगे। दीज आर दी टू कंडीशन। दो कंडीशन बेटा कौन सी है, कि एक तो जब देखो आपने देखा टेम्परेचर यहाँ पे 120 के लगभग आ गया, देखो यहाँ पे 121, तो मीन्स आपकी कंप्लीट हीटिंग हो गई थी। मेल्टिंग पॉइंट इज 121। तो दो टेम्परेचर आप नोट डाउन करेंगे, व्हेन द कंपाउंड स्टार्ट मेल्टिंग फर्स्ट टेम्परेचर, व्हेन कंपाउंड कंप्लीटली मेल्ट्स सेकंड टेम्परेचर। नाउ टेक द मीन ऑफ इट, फिर आप उसका मीन ले लेंगे, दैट इज द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ दैट कंपाउंड। इसके बाद बेटा नेक्स्ट हम दूसरा वे दिखा रहे हैं कि किस टाइप से आप मेल्टिंग पॉइंट डिटरमाइन कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि आप बर्नर के थ्रू हीट करके थील सेपरेटर्स को यूज करके आप ऐसा करें। उसके लिए देखो उसी टाइप से फर्स्ट स्टेप आपकी सेम रहेगी, कैपिलरी ट्यूब को आपने वन एंड से क्लोज किया, उसके अंदर आपने जो पाउडर्ड फॉर्म के अंदर आपका कंपाउंड था देखो टैप किया आपने, इसको फिलअप कर लिया कैपिलरी ट्यूब के अंदर, जिसका देखो वन एंड बॉटम से क्लोज है। उसके बाद आप क्या करेंगे, सेम वही देखो आपने टाई अप कर दिया विद द थर्मोमीटर इन सच ए वे दैट द कैपिलरी ट्यूब लोअर पोर्शन मस्ट बी एट द हाफ वे मार्क ऑफ द बल्ब ऑफ द थर्मोमीटर। उसके बाद देखो पहले आपने स्टीरर रखा, उसके बाद देखो आपने टाई अप कर दिया विद द हेल्प ऑफ द स्टैंड थर्मोमीटर को। नीचे हॉट प्लेट है बेटा आपके पास, हॉट प्लेट को आपने ऑन किया, लिक्विड पैराफिन आपने इसमें ले रखा है, कॉन्टिन्यूअस आप स्टीर करते रहेंगे टू फॉर्म द यूनिफॉर्म हीटिंग। जैसे आपने पहले थील्स ट्यूब में देखा था, साइड में हीटिंग कर रहे थे, नीचे नहीं, क्योंकि कंटिन्यूअस ताकि उसका मोशन होता रहे। इसमें आप स्टीरर की हेल्प से इसको हीटअप करेंगे, और देखो ये टेम्परेचर जिसके ऊपर ये मेल्ट हो गया आप उसको नोट डाउन कर लेंगे। कंटिन्यू हीटिंग टू नोट डाउन द टेम्परेचर। तो इस स्टेप से आप मेल्टिंग पॉइंट को डिटरमाइन कर लेते हैं। क्लियर हो गया बेटा। तो जो आपने यूज किया टेम्परेचर को डिटरमाइन करने के लिए, उस एपरेटस को आपने क्या कहा, दैट इज द थर्मोमीटर। सो थर्मोमीटर इज वेरी नेसेसरी कंपोनेंट टू डिटरमाइन द टेम्परेचर, बिकॉज द टेम्परेचर इज generally to be noted down during the different experimentation, during different experiment. Almost in all the experiment we have the requirement to note down the temperature. लगभग हर experiment के अंदर हमें temperature note down करना पड़ता है। in the physical experiment में जो भी आप experiment करते हैं उसमें आपको temperature देखना पड़ता है। in today's experiment the surface tension of the water is this much, the viscosity of the water is this much, तो द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द सब्सटेंस इज दिस मच, मींस आपको टेम्परेचर तो नोट डाउन करना ही पड़ता है। तो वी ऑलवेज जनरली हैव द रिक्वायरमेंट ऑफ द थर्मोमीटर। नेक्स्ट, जैसे मैंने आपको बताया जो कैपिलरी ट्यूब है उसको हम यूज करते हैं ड्यूरिंग द टीएलसी पर्पस, ड्यूरिंग द पेपर क्रोमेटोग्राफी। तो देखो दो एंड से आप कैपिलरी ट्यूब को देखो पकड़ लेते हैं ऐसे, वन एंड सेकंड एंड, और फिर आप हीटअप करते हैं, और फिर आप इसको देखो ऐसे करके, जैसे ये मेरे हाथ में पेन है, आप इसको ऐसे पकड़ के ऐसे खींच लेते हैं। तो एक कैपिलरी ट्यूब दो कैपिलरी ट्यूब में कन्वर्ट हो जाती है। जो मिड पोर्शन होता है देखो एक कैपिलरी ट्यूब का, देखो यहाँ से जो मिड पोर्शन है ये बिल्कुल नैरो हो जाता है। आप बस पकड़े रखें, एकदम मेल्ट होगी और आप ऐसे खींचते चले जाएं, मेल्ट होगी आप इसको ऐसे खींचते चले जाएं। तो वन कैपिलरी ट्यूब बीन कन्वर्टेड इनटू द टू कैपिलरी ट्यूब्स of of each of the capillary tube, one end now become narrower। वो narrower हो गया क्योंकि हमें बिल्कुल स्मॉल स्पॉट लगाना पड़ता है इन द टीएलसी और द पेपर क्रोमेटोग्राफी। इसकी एक अलग से स्मॉल हम पहले भी आपको समझा चुके होते हैं कि किस टाइप से नैरोइंग की जाती है। सो दैट इज द नैरोइंग। नेक्स्ट, टेस्ट ट्यूब। टेस्ट ट्यूब आपके डिफरेंट एमएल की होती है, 10 ml, 20 ml, डिफरेंट टेस्ट ट्यूब्स आपकी लेबोरेटरी के अंदर होती है। दीज जनरली बीन यूज्ड ड्यूरिंग द क्वालिटेटिव एनालिसिस। क्वालिटेटिव जब आप एनालिसिस करते हैं, चाहे वो आपकी ऑर्गेनिक फंक्शन को एनालिसिस करें, चाहे आप वो एसिड बेसिक रेडिकल एनालिसिस करें इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, तो जनरली दीज टेस्ट ट्यूब्स आर बीन यूज्ड। इन टेस्ट ट्यूब को आप बेटा यूज करते हैं, और ये टेस्ट ट्यूब रैक है जिसके अंदर टेस्ट ट्यूब को आप रखते हैं, दैट इज कॉल्ड द टेस्ट ट्यूब रैक। और टेस्ट ट्यूब को आप जिस चीज से पकड़ते हैं दैट इज कॉल्ड एज द टेस्ट ट्यूब होल्डर, वो आपका टेस्ट ट्यूब होल्डर कहलाता है। वो बेटा कौन सा होता है, टेस्ट ट्यूब होल्डर। देखो मेरे पास, तो मेरे हैंड में आप देखें, अभी मैं आपको दिखाता हूँ, मेरे पास भी आप देखें,
साथ के साथ। सो दैट इज द टेस्ट ट्यूब होल्डर। बेटा ये टेस्ट ट्यूब होल्डर है मेरे पास, दैट इज टेस्ट ट्यूब होल्डर। देखो इसको आप ऐसे पकड़ने के लिए यूज करते हैं इसको। यहाँ पे आप टेस्ट ट्यूब, इसमें मान लीजिए मेरे पास देखो एक पेन है, देखो इस पेन को मैंने इस टेस्ट ट्यूब होल्डर के अंदर जैसे डाला, तो ये यहाँ पे अगर हम इसको छोड़ देंगे अब ये बचा रहेगा ये पे। सो दैट इज द टेस्ट ट्यूब होल्डर। अब डायरेक्ट टेस्ट ट्यूब को अपने हैंड से डायरेक्ट नहीं पकड़ेंगे, अब विद द हेल्प ऑफ द टेस्ट ट्यूब होल्डर ही आप उससे पकड़ेंगे। तो टेस्ट ट्यूब होल्डर आपकी लेबोरेटरी के अंदर आपको मिल जाएंगे। यूनिफॉर्म हीटिंग, जैसे मैंने आपको बताया, देखो ये नीचे मैग्नेटिक स्टीरर रख रखी है, ये हीटिंग मेंटल है देखो नीचे, और इसके नीचे ये मैग्नेटिक स्टीरर है देखो। तो जैसे ही आप नीचे से हीट करते हैं, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट की वजह से ये कंटिन्यूस हीटिंग, और जो भी इसके अंदर सॉल्यूशन है उसको ये कंटिन्यूसली क्या करता रहेगा, मिक्सअप करता रहेगा, सॉल्यूशन को शेक करता रहेगा, यूनिफॉर्म हीटिंग होती रहेगी। सो यहाँ पे इस स्लाइड के अंदर हमने क्या शो किया है कि हाउ द यूनिफॉर्म हीटिंग टेक्स प्लेस with the help of the magnetic stirrer which is placed in that beaker, and beaker is placed on the, बोलो किसके ऊपर, हीटिंग मेंटल, हीटिंग मेंटल के ऊपर बीकर है, बीकर के अंदर मैग्नेटिक स्टीरर है। जैसे आपने हीटअप किया आपकी यूनिफॉर्म हीटिंग हो जाएगी। नेक्स्ट हमने शो किया जो ऑलमोस्ट अभी सभी के होम के अंदर भी होता है, दैट इज द माइक्रोवेव ओवन। माइक्रोवेव ओवन के अंदर जब भी हम हीटिंग करते हैं तो जो नॉर्मल कन्वेंशनल हीटिंग होती है आपकी, if a particular reaction takes 24 hours during the conventional heating through burner, if the same reaction takes place in the microwave oven, that takes very little time. Sometime the reaction in the microwave oven takes place just in 1 to 2 minutes, even in seconds also. So the microwave heating जब आप करते हैं तो दैट इज ऑल्सो ए पोल्यूशन लेस केमिस्ट्री, दैट इज ऑल्सो ए ग्रीन केमिस्ट्री। तो माइक्रोवेव हीटिंग इज ए पार्ट ऑफ द ग्रीन केमिस्ट्री, लाइक दैट ऑफ इन द प्रीवियस स्लाइड, दैट इज द पार्ट ऑफ द ग्रीन केमिस्ट्री। ये भी ग्रीन सिंथेसिस है जिसमें आप हीटिंग नहीं कर रहे, आप बर्नर को यूज नहीं कर रहे, कोई फ्यूम्स बाहर नहीं आ रहे। तो यहाँ पे दैट इज द पार्ट ऑफ ग्रीन केमिस्ट्री। फर्दर माइक्रोवेव हीटिंग इज द फर्दर मोर स्टेप टुवर्ड्स द ग्रीनर टेक्नोलॉजी। Greener technology is the technology in which the technology which causes no pollution, which produce no side product, जिसके अंदर side product ना निकले। तो that technology is the green technology, और towards this green technology the microwave heating is a very good step। ये बहुत अच्छी स्टेप है आपकी ग्रीन टेक्नोलॉजी की तरफ। नेक्स्ट टाइप ऑफ, दैट इज अ सिंपल ओवन, जिसके अंदर आपके जितने भी ग्लास सेपरेटर्स होते हैं, आफ्टर द वॉशिंग वी जनरली प्लेस दिस ग्लास सेपरेटर्स इन दैट ओवन फॉर द ड्राइंग पर्पस के लिए हम ओवन को यूज कर लेते हैं। और कई बार हमारे कुछ सब्सटेंस ऐसे होते हैं जिनको हमें ड्राई करने के लिए, यानी बिना, देखो जितने भी ऑर्गेनिक सिंथेसिस होंगी उसमें जितने भी एपरेटस आप यूज करेंगे, वेदर इट इज द राउंड बॉटम फ्लास्क और द बीकर और द कंडेंसर, एवरीथिंग ऑल मस्ट बी कंप्लीटली ड्राइड अप, वो कंप्लीटली ड्राइड अप होने चाहिए। तो ड्राइड अप करने के लिए हम उसको किस में रखते हैं, इस ओवन के अंदर रखते हैं, और इसका टेम्परेचर हम सेट कर देते हैं ऑलमोस्ट एट ए टेम्परेचर 110, बिकॉज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द वाटर इज 100, तो 100 से थोड़ा ऊपर टेम्परेचर करके हम इसको सेट कर देते हैं, तो फिर वो इजिली ड्राई हो जाते हैं। Next, beakers. In the laboratory, we generally use the different size of beaker. अलग अलग साइज के होते हैं बेटा, वेरी स्मॉल भी होते हैं आपके 10 ml से लेके आपके बिगर 500, 500, 1000 ml तक के बीकर आपके लेबोरेटरी के अंदर आपको मिल जाते हैं। दीज आर जनरली बीन यूज्ड, दीज बीकर जनरली बीन यानी कैलिब्रेटेड कर देते हैं, ग्रेजुएटेड होते हैं, इनके ऊपर मार्क लगे होते हैं, जैसे आपको दिखा कि यहाँ तक अगर आप इसमें सॉल्यूशन डालते हैं तो 50 ml आएगा, यहाँ तक डालेंगे तो 100 ml, ये 150, ये 200, ये 250, एंड दीज आर जनरली बीन कैलिब्रेटेड। इनको फिर हम कैलिब्रेट भी कर देते हैं। कैलिब्रेट मीन्स कि जो मार्क लगा हुआ है 200 का फॉर एग्जांपल, वहां तक अगर हम सॉल्यूशन लेते हैं तो वो सॉल्यूशन 200 ml ही है, कहीं वो सॉल्यूशन 200 ml से कम या ज्यादा तो नहीं। तो एक्सैक्ट उसके मार्क के बारे में सही पता लगा लेना कि दैट मार्क इज करेक्ट, नाउ दैट कॉल्ड एज द कैलिब्रेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर एपरेटस। वो उस एपरेटस का कैलिब्रेशन कहलाता है। मींस कैलिब्रेटेड एपरेटस के अंदर हम एग्जैक्ट वॉल्यूम मेजर कर सकते हैं। अगर वो कैलिब्रेटेड नहीं है तो जो वॉल्यूम हमने मेजर किया दैट मे और मे नॉट बी करेक्ट, वो ठीक भी हो भी सकता है और ना भी हो। तो इसलिए अक्सर हमें ग्रेजुएटेड कैलिब्रेटेड एपरेटस ही यूज करने पड़ते हैं आपके डिफरेंट
रिएक्शंस के दौरान, डिफरेंट टाइट्रेशंस के दौरान, डिफरेंट मेजरिंग के दौरान. Next, that called as the conical flask, generally being called as the Erlenmeyer flask. इनकी जो फ्लैट बॉटम होता है और लॉन्ग नैरो नेक होती है इनकी. दीज जनरली बीन यूज्ड ड्यूरिंग द टाइट्रेशन पर्पसेस. इनको हम टाइट्रेशन पर्पसेस के दौरान यूज करते हैं. इसके जो अपर एंड है, जो नैरो एंड है, वहां पे हम कोर्क लगा सकते हैं. लेकिन याद रखें, one should always remember that never to heat any of the conical flask or the Erlenmeyer flask when it is kept, जब हम इसके ऊपर कैप लगा रखे हो, because it causes a lot of pressure inside it and that glass apparatus may explode. वो फट सकता है due to the high pressure, क्योंकि हीटिंग के दौरान क्या क्रिएट हो जाएगा बेटा, हाई प्रेशर क्रिएट हो जाएगा और आपकी जो गिलास apparatus that may explode. तो जब भी हीटिंग करें उसके दौरान आप इसके ऊपर कैप ना लगाएं. नेक्स्ट, दैट इज द राउंड बॉटम फ्लास्क. इसे बॉइलिंग फ्लास्क भी कहते हैं. दैट इज द राउंड बॉटम फ्लास्क. इसे फ्लोरेंस फ्लास्क भी कह देते हैं. इसको जनरली यूज कब करते हैं? डिफरेंट डिस्टिलेशन पर्पसेस. जब भी हम डिफरेंट डिस्टिलेशन करते हैं, वेदर इट बी द सिंपल डिस्टिलेशन, जैसे अभी आपको यहाँ पे ये सिंपल डिस्टिलेशन हमने यूज कर रखी है, जिसमें आपके राउंड बॉटम फ्लास्क के अंदर मान लीजिए वी हैव द टू सब्सटेंस, या एक लिक्विड है विच सम इम्प्यूरिटी, उसके अंदर कोई इम्प्यूरिटी है, और इम्प्यूरिटी और लिक्विड के बीच का बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस काफी है, मींस ग्रेटर देन 15 से 20, 15 to 20 डिग्री सेल्सियस का डिफरेंस होना चाहिए. इफ देयर इज ए बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंस इन बिटवीन द टू लिक्विड्स, ए एंड बी लिक्विड, फॉर एग्जांपल ए इज द मेन लिक्विड, बी इज द इम्प्यूरिटी, if the difference of boiling point in between A and B is more than 15 or the 20 degrees Celsius, then we can cause that particular distillation called as the simple distillation. Simple distillation में the substance which have the lower boiling point which will boiled up first, और यहाँ पे हम ऊपर यूज करते हैं that is called as the Beckman thermometer. बेटा ये Beckman thermometer कहलाता है. इसमें हम टेम्परेचर नोट डाउन कर लेते हैं. जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम है बेटा, वो वेपर्स देखो यहाँ से जाएंगे. आगे हमने कंडेंसर ले रखा, वाटर कंडेंसर. नीचे वाले एंड से देखो वाटर एंटर करेगा, ऊपर वाले एंड से वाटर बाहर जाएगा. आउटर जैकेट में वाटर घूमता रहेगा, क्योंकि जो भी वेपर्स यहाँ से आएंगे दे गेट कंडेंस्ड एंड we again receive that A substance इन द लिक्विड फॉर्म. और ये ए लिक्विड फॉर्म देखो ड्रॉप बाय ड्रॉप आपको दिख रहा है यहाँ पे. लिक्विड फॉर्म के अंदर हम इस दूसरे बीकर के अंदर उसको कलेक्ट कर लेते हैं. प्रोसेस कॉल्ड एज द सिंपल डिस्टिलेशन. तो राउंड बॉटम फ्लास्क को हमने यूज किया. ऐसे ही राउंड बॉटम फ्लास्क को देखो हम यूज करते हैं यहाँ पे, दैट इज द फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन. फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में क्या है बेटा, जो बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस है इन बिटवीन द टू लिक्विड्स, फॉर एग्जांपल ए एंड बी, देयर आर द टू लिक्विड्स एंड द बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंस इन बिटवीन दीज टू लिक्विड इज वेरी स्मॉल. तो क्या होगा, वेन एवर यू विल हीट, जैसे आपने बर्नर से इसको हीट किया, बोथ ऑफ द लिक्विड गेट वेपराइज, दोनों वेपराइज कर जाएंगे. तो नाउ वी हैव द रिक्वायरमेंट ऑफ द लॉन्गर डिस्टेंस टू रन बोथ ऑफ दीज वेपर्स. तो दोनों ए और बी के जो वेपर्स बेटा रन करेंगे, देखो यहाँ से ए और बी के, ए के भी वेपर रन करेंगे, बी के भी. लेकिन जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम था, रन करते करते ए के वेपर्स तो बेटा कंडेंस होके वापस आ जाएंगे नीचे यहाँ से ए के, और बी के वेपर चले जाएंगे. और देखो बी का जो वेपर गए उसको देखो ये ऊपर दोबारा से एक कंडेंसर और हम लगा देते हैं बेटा. यहाँ पे देखो वन मोर कंडेंसर. तो बेटा जो ए के जो वेपर्स हैं वो आगे चले जाएंगे, बी के रिकंडेंस होके दोबारा नीचे. नेक्स्ट एक और कंडेंसर, उस कंडेंसर के थ्रू ए को हम अलग से कलेक्ट कर लेते हैं. नाउ दैट इज कॉल्ड एज द फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन. इसे आप फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कहते हैं. फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन को देखो हम मेन जो हमारा यूज है वो कहाँ पे करते हैं, पेट्रोलियम इंडस्ट्री के अंदर हम उसको यूज करते हैं. जहाँ पे क्या करते हैं, देखो डिफरेंट, देखो आपका क्रूड ऑयल था उसको हीट अप किया, देखो डिफरेंट लेवल के ऊपर. जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम है वो नीचे रह गया, जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम था, सॉरी जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम है वो सबसे ऊपर देखो बॉयल होके सबसे ऊपर से निकलेगा. उसके बाद देखो डिफरेंट डिफरेंट एग्जिट ऑन द बेसिस ऑफ देयर बॉइलिंग पॉइंट. जिसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा है वो आपके कंडेंस होके नीचे गिरते रहेंगे, वो सबसे नीचे से निकलेंगे, और दूसरे आपके सबसे ऊपर वेपराइज होके चले जाते हैं. हियर इज द स्टीम डिस्टिलेशन, जिसमें आप क्या करते हैं, ये जो राउंड बॉटम फ्लास्क है बेटा, आप इसमें क्या करते हैं, इसके अंदर आप वाटर लेते हैं बेटा. यहाँ पे बोलो आपने क्या ले लिया, हियर इज द वाटर. आप नीचे से हीट करते हैं तो स्टीम बनेगी. अब जो स्टीम बन गई बेटा, इधर से हम अपना मेन सब्सटेंस डालते हैं. देखो मेन सब्सटेंस मिक्सचर ऑफ लिक्विड्स है यहाँ पे ए और बी. आउट ऑफ दीज ए एंड बी, वन ऑफ द लिक्विड दैट इज द स्टीम वोलेटाइल,
तो स्टीम का मतलब जो वेपर्स हैं, वाटर के जो वेपर्स हैं, ए और बी किसी एक को वो अपने आप देखो ऊपर ले जाएंगे अपने साथ। जो जो स्टीम वोलेटाइल है वो ऊपर चला जाएगा, जो स्टीम की हेल्प से वोलेटलाइज हो सकता है, वेपर में कन्वर्ट कर हो सकता है। तो जो दो मिक्सचर ऑफ जो लिक्विड थे ए और बी, आउट ऑफ दीज टू विच वन इज इजिली बीन स्टीम वोलेटलाइज्ड, तो वो चला जाएगा। फॉर एग्जांपल ए चला गया तो ए स्टीम के साथ उधर गया, उधर जाके दूसरी साइड में अब यहाँ पे टू लेयर्स बन जाएंगी। दो लेयर किसकी बनेंगी, एक तो ए की और एक वाटर की। एक तो वाटर और दूसरा बेटा क्या होगा, ए। डिपेंडिंग अपॉन देयर डेंसिटी, कि किसकी डेंसिटी कम है किसकी ज्यादा है, तो उसके बेसिस के ऊपर ए की लेयर नीचे भी हो सकती है ऊपर भी, एंड सो ऑन। बाद में सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन के द्वारा जो आपकी सेपरेटिंग फनल होती है, सो सेपरेटिंग फनल की हेल्प से आप दोनों लेयर को सेपरेट कर लेंगे। तो हेयर इज द रिक्वायरमेंट ऑफ सेपरेटिंग फनल ऑल्सो। यहाँ पे सेपरेटिंग फनल बेटा देखो इस टाइप से होती है। देखो अगर मैं डायग्राम आपके सामने बनाऊं, सो दैट इज द सेपरेटिंग फनल। देखो इस टाइप से ये सेपरेटिंग फनल आगे हम शो भी करेंगे आपके सामने। देखो ये, तो यहाँ पे टू डिफरेंट लेयर। तो एक लेयर देखो नीचे से निकल जाएगी, जो नीचे वाली लेयर होगी, बाद में दूसरी लेयर को अलग कर देंगे। तो विद द हेल्प ऑफ द सेपरेटिंग फनल वी कैन सेपरेट दीज टू लिक्विड्स। कंडीशन थी बेटा यहाँ पे कि इस टेक्निक को हम सिर्फ तभी यूज कर सकते हैं व्हेन वन ऑफ द सब्सटेंस इज स्टीम वोलेटाइल, और जो सब्सटेंस स्टीम वोलेटाइल है, स्टीम वोलेटाइल तो है बट वाटर इनसोल्युबल है, तभी तो वो वाटर के साथ यहाँ पे सेपरेट लेयर बनाएगा। तो तभी तो दो लेयर बनेंगे, एक वाटर की लेयर एक ए की लेयर, तभी हम उसको सेपरेटिंग फनल की हेल्प से सेपरेट कर पाएंगे। दैट हियर इज द डिस्टिलेशन अंडर द रिड्यूस्ड प्रेशर। सिंपल डिस्टिलेशन है, सिर्फ हमने बेटा यहाँ पे देखो ये वैक्यूम पंप लगा देंगे। देखो एग्जॉस्ट पंप दिख रहा है ना बेटा, वैक्यूम पंप, ये प्रेशर को कंट्रोल करने के काम आता है। means there are many substances which get decomposed near their boiling point। जब उसका जैसे हम जब यहाँ से हीट करेंगे बेटा, इसके अंदर कुछ सब्सटेंस ऐसे होते हैं जब उसका बॉइलिंग पॉइंट फॉर एग्जांपल 100 है, तो 100 टेम्परेचर आते ही दैट सब्सटेंस गेटिंग, तो फिर बेटा क्या होगा कि हमारा जो ये सब्सटेंस था जो आपके बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर आके क्या हो जाता है, गेट डिकम्पोज्ड। तो हम उसको क्या करेंगे, उसको लोअर टेम्परेचर के ऊपर बॉयल करेंगे। और बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन आप जानते हैं, द टेम्परेचर एट विच द वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड इज इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड एज द बॉइलिंग पॉइंट। तो फिर हम क्या करेंगे, हम बाहर से क्या लगाएंगे, एग्जॉस्ट पंप, जिसकी वजह से हम प्रेशर रिड्यूस कर देंगे। मीन्स नाउ दैट लिक्विड, now that substance will boil at the lower temperature, means below their normal boiling point। normal boiling point से पहले ही हम उसको बॉयल करवा देंगे, क्योंकि वो डिकम्पोज कब हो रहा था, अपने नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट वाले टेम्परेचर पे। अगर हम उसको पहले ही बॉयल करवा दे तो फिर क्या होगा, वो डिकम्पोज नहीं होगा। तो इस तरीके से हम अंडर रिड्यूस प्रेशर हीटिंग करते हैं, बॉयल करवा देते हैं उसको, और फिर हम उसको सेपरेट कर पाते हैं, लाइक द सिंपल डिस्टिलेशन। तो नाउ द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द सिंपल डिस्टिलेशन एंड द डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस प्रेशर इज दैट in the simple distillation the liquid boils at their normal boiling point, while in case of the distillation at the reduced pressure the liquid get boiled at a boiling point lower than that of the normal boiling point। normal boiling point से पहले हम उसको boil करवा देते हैं by using that exhaust pump, vacuum pump हम उसको use करके। that is the sublimation के लिए आप use करते हो बेटा। that is the china dish, उसके ऊपर आपने इन्वर्टेड फनल लगाए, नीचे से आप हीट करते हैं, सब्लिमेशन प्रोसेस चलेगी, इंप्यूरिटी नीचे रह जाएंगी, और जो कंपाउंड है वो वेपर में कन्वर्ट होकर ऊपर कूलिंग मिलेगा, दोबारा आपकी कंडेंसेशन होके वो दोबारा इनर वॉल के ऊपर जाके बेटा क्या हो जाएगा, यहाँ पे गेट स्टिक, और इंप्यूरिटी विल रिमेन इन द चैनल डिश। तो ये सब्लिमेशन प्रोसेस होती है बेटा। ये वॉच ग्लास होती है जो जनरली कब यूज करते हैं, किसी सब्सटेंस को रखने के लिए वॉच ग्लास के ऊपर, किसी जैसे बीकर है उसको कवर करने के लिए आप वॉच ग्लास को यूज कर सकते हैं। सो दैट इज द पर्पज ऑफ द वॉच ग्लास। नाउ दैट इज अ फनल। देखो हम यहाँ पे सेपरेशन दिखा रहे हैं फनल की हेल्प से। देखो ये फिल्टर पेपर लिया, देखो कैसे इसको हम फोल्ड करते हैं, फोल्ड करके देखो ध्यान से देखते चले जाना कैसे हम फोल्डिंग आपको शो करते हुए दिखा रहे हैं। इस टाइप से आप फोल्ड करते हैं, फोल्ड करने के बाद आप इसको फनल के ऊपर रखते हैं, और उसके बाद आप क्या कर देते हैं बेटा, यहाँ पे आपकी फिल्ट्रेशन। तो आपका जो सॉलिड सब्सटेंस है ऊपर रह जाएगा, नीचे आपका मदर लिक्विड चला जाएगा, जो लिक्विड पार्ट है वो आपके नीचे हो जाता है, अलग से सेपरेट हो जाता है। नाउ हियर वी आर शोइंग यू द बकनर फनल। देखो आपकी नीचे कॉनिकल फ्लास्क है, और यहाँ पे जो रबर ट्यूब है, यहाँ पे बेटा हमने वैक्यूम पंप लगा रखा है बेटा, ध्यान रखना वैक्यूम पंप।
वैक्यूम पंप। वैक्यूम पंप क्या करता है, अंदर की जितनी भी एयर है यहाँ पे उसको अंदर की तरफ सक कर ले जाता है सारी एयर को। तो मीन्स जब भी ये फिल्ट्रेशन प्रोसेस चलती है तो फिल्ट्रेशन के दौरान बेटा होता क्या है, फिल्ट्रेशन जब करते हैं तो ऊपर से प्रेशर चलता है जिसकी वजह से लिक्विड नीचे जाना होता है, और अंदर इस कंटेनर के अंदर जितनी भी गैस है वो गैस के पार्टिकल ऊपर की तरफ प्रेशर लगाते हैं जिसकी वजह से प्रेशर स्लो हो, यानी जो आपकी फिल्ट्रेशन प्रोसेस स्लो हो जाती है। अगर हम अंदर की एयर को बाहर निकाल दे विद द हेल्प ऑफ द वैक्यूम पंप, देखो सारी एयर इधर निकल जाए, अंदर एयर बची नहीं, ऊपर का फुल प्रेशर लगेगा, और जिसकी वजह से और फर्दर भी अगर हम और ज्यादा वैक्यूम क्रिएट कर दे, इधर की एयर तो इसने खींच ली वैक्यूम पंप ने, तो वो इधर से भी प्रेशर लगाना शुरू कर देगा। इधर से भी बेटा क्या एग्जर्ट करेगा, ये प्रेशर इस टाइप से। तो प्रेशर एग्जर्ट होने से फिल्ट्रेशन प्रोसेस नाउ बिकम्स फास्ट। तो फिल्ट्रेशन प्रोसेस को फास्ट करने के लिए हम वैक्यूम पंप यहाँ पे यूज करते हैं फर्स्ट पर्पज। और ऊपर जो फनल है इसे हम बकनर फनल कहते हैं। इस ये बिल्कुल कटोरी जैसी होती है, और इसका जो बॉटम है उसके ऊपर सबसे पहले हम फिल्टर पेपर लगाते हैं बेटा। बकनर फनल के परफोरेटेड होती है, यहाँ पे छेद होते हैं इसके अंदर, पूरी फनल के अंदर, यहाँ पे अंदर की साइड में, इसके ऊपर हम वाटमैन फिल्टर पेपर लगा देते हैं। वाटमैन फिल्टर पेपर इसके ऊपर रखते हैं, फिर आप ऊपर से इसमें अपना सॉल्यूशन डालते हैं। लास्ट में जब आपका प्रोडक्ट बन जाता है, ड्यूरिंग ऑर्गेनिक सिंथेसिस, इनऑर्गेनिक सिंथेसिस के दौरान जब आप फिल्ट्रेशन करते हैं, जनरली द फिल्ट्रेशन बीन डन थ्रू दीज बकनर फनल्स, क्योंकि ड्राई अप भी हो जाता है, क्योंकि नीचे से वैक्यूम पंप की हेल्प से सारा का सारा जो लिक्विड है वो तो नीचे चला जाता है, तो प्रोसेस फास्ट भी हो जाती है, और जो आपका प्रोडक्ट है वो इजीली ड्राई अप भी हो जाता है। These are the graduated cylinder or the measuring cylinder, यानी सो बेटा दैट इज द ग्रेजुएटेड सिलेंडर और द मेजरिंग सिलेंडर। इसको आप यूज करते हैं डिफरेंट पर्पसेस के लिए। जब आपको एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ कोई लिक्विड चाहिए कि 10 ml 20 ml आपको कोई लिक्विड डालना है, उसके बाद फिर कोई 5 ml आप दूसरा सॉल्वेंट ऐड कर दें, दूसरा रिएक्टेंट ऐड कर दें ड्यूरिंग द ऑर्गेनिक सिंथेसिस ऑल्सो, तो दैट ग्रेजुएटेड सिलेंडर और द मेजरिंग सिलेंडर बीइंग जनरली बीइंग यूज्ड। दैट इज द वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क। वॉल्यूमेट्रिक जो फ्लास्क है डिफरेंट साइज की आती हैं, 100 ml, 250 ml, 500 ml, डिफरेंट की आती है। दीज आर जनरली बीन यूज फॉर द प्रिपरेशन ऑफ द स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। स्टैंडर्ड सॉल्यूशन, इसके ऊपर देखो ये मार्क लगा होता है, जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा है, देखो ये सर्कुलर मार्क दिख रहा है, यहाँ तक हम इसको फिलअप करते हैं। तो यहां तक मार्क हमें क्या शो करता है कि अगर हमने यहां तक सॉल्यूशन को फिलअप कर दिया, और जो इसके ऊपर लिख रखा होता है कि दैट इज ऑफ 200 ml, तो 200 ml का सॉल्यूशन आपका प्रिपेयर हो गया। सो दैट वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क, या इसे आप मेजरिंग फ्लास्क भी कह देते हैं, क्योंकि एग्जैक्टली मेजर करके आप सॉल्यूशन इसको बनाते हैं। सो दैट इज द वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क और द मेजरिंग फ्लास्क, एंड दैट इज यूज्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ द स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। तो यहाँ पे आप देखें, दीज आर द केमिकल बैलेंस, दैट इज द सिंपल मैनुअल केमिकल बैलेंस। अगर फिजिक्स में यूज करें फिजिकल बैलेंस, केमिस्ट्री के अंदर यूज करें, सो दैट इज कॉल्ड एज द केमिकल बैलेंस। देखो डिफरेंट डिफरेंट आपको वेइंग करते दिख रहे हैं, देखो जैसे आपने अमाउंट डाला, देखो वेट आपका चेंज होता चला गया। जनरली आप क्या करते हैं कि ये आपके पास क्या है, देखो ये आपके पास स्पेसिफिक ग्रेविटी बोतल है, ये मेजरिंग। आप किसमें क्या करते हैं, जब आप कौन सा एक्सपेरिमेंट करें बेटा, सरफेस टेंशन वाला एक्सपेरिमेंट करते हैं, विस्कोसिटी डिटरमाइन का एक्सपेरिमेंट करते हैं। तो जनरली ड्यूरिंग दैट जब हमें डेंसिटी को मेजर करना हो, डेंसिटी डिटरमाइन करनी हो, तो आप स्पेसिफिक ग्रेविटी बोतल एम्प्टी का भी वेट लेते हैं, इसमें आप कभी वाटर डालते हैं स्टैंडर्ड सॉल्वेंट, फिर आपका गिवन सॉल्वेंट डालते हैं, फिर आप वेट करते हैं। तो वेट करने के लिए आपको बैलेंस की तो जरूरत होती ही है। फाइनली ऑर्गेनिक सिंथेसिस, इनऑर्गेनिक सिंथेसिस के दौरान फाइनल प्रोडक्ट आपका बन गया, तो उसके दौरान भी आपको क्या करना पड़ता है, आप हमेशा ही वेइंग तो करेंगे ही, तभी तो आपको यील्ड का पता चलता है कि कित प्रोडक्ट बना, उसकी परसेंटेज यील्ड कितनी है। क्या 100% यील्ड हमें मिली, 20% मिली, 90% मिली, व्हाट इज द यील्ड ऑफ द प्रोडक्ट। तो उसके लिए हमें बैलेंस की रिक्वायरमेंट तो होती ही है। तो लेबोरेटरी के अंदर दोनों टाइप के बैलेंस होते हैं, दैट द फिजिकल बैलेंस, ये आपका सिंपल मैनुअल फिजिकल बैलेंस है, और ये आपका डिजिटल केमिकल बैलेंस है यहाँ पे, जिसमें डायरेक्ट रीडिंग आपके पास आ जाती है। नाउ दैट इज द ड्रॉपर। ड्रॉपर बीन जनरली यूज्ड फॉर द एग्जैक्ट मेजरमेंट। जब लास्ट में आपको ड्रॉप बाय ड्रॉप को सॉल्यूशन ऐड करना है, तो उस वक्त आप किसको यूज करते हैं, ड्रॉपर को यूज करते हैं। सो दैट इज द ड्रॉपर हेयर। जो ड्रॉपर होते हैं ये आपके प्लास्टिक के भी हो सकते हैं, ये ग्लासेस के भी हो सकते हैं। इसके बैक में आपने देखा, आपके रबर लगा हुआ होता है, जिसको आप प्रेस करते हैं,
प्रेस करते हैं तो इसमें सक होके ऊपर की तरफ आ जाता है लिक्विड। उसके बाद आप उसको दोबारा से प्रेस करते हैं तो ड्रॉप बाय ड्रॉप आपको जो सॉल्यूशन जितना भी ऐड करना हो आप उतना ऐड कर सकते हैं। तो ये एक बहुत ही नेसेसरी इक्विपमेंट है जिसको जनरली यूज किया जाता है। कब यूज किया जाता है मैंने आपको बताया, कोई आपसे पूछे, इट इज जनरली बीन यूज्ड व्हेन द रिएजेंट इज रिक्वायर्ड इन एक्सट्रीमली स्मॉल अमाउंट इन द सॉल्यूशन। आप यहाँ पे देखिए पिपेट। पिपेट डिफरेंट टाइप्स की होती हैं। जनरली ये पिपेट आपके लिए अच्छी रहती है जिसमें पीछे आप क्या लगा देते हैं, ऊपर आपके पास क्या होता है, प्रेस करने के लिए आप नोजल लगा देते हैं, फिर आपको माउथ से सक नहीं करना पड़ता। जैसे आपने यहाँ पे देखा, माउथ से क्या सक किया इस पिपेट के अंदर सॉल्यूशन को? नो, ये माउथ से सक नहीं किया। तो these are the better pipettes as compared to the other pipettes which in which the solution are generally been sucked with the help of the mouth, जैसे ये ऊपर डायग्राम हमने दिखा रखा है। अब यहाँ पे देखे भी गए, देखो इसके अंदर देखो माउथ से, आप लेफ्ट वाले डायग्राम में देखो, देखो माउथ से यहाँ पे पिपेट है, ये 10 ml 20 ml डिफरेंट आपकी पिपेट आती है, इनको माउथ से सक किया जा रहा है। नेक्स्ट में देखिए माउथ से सक नहीं कर रहे, ऊपर हमने ये रबर बल्ब लगा रखा है, इसको जैसे आप प्रेस, पहले आप प्रेस कर ले, फिर जैसे आप डिप करेंगे सॉल्यूशन में तो अपने आप ये सक होता हुआ ऊपर तक आ जाएगा। और जो मार्क लगा हुआ है वहां तक आप इसको सॉल्यूशन को, मार्क से ऊपर चला जाए कोई बात नहीं, दोबारा से आप प्रेस कर देंगे, एक्स्ट्रा सॉल्यूशन बाहर आ जाएगा। तो उस मार्क तक का, जैसे 10 ml है या 20 ml, जितनी की भी पिपेट है एग्जैक्टली, और उसके बाद आप जब इसके अंदर डाल देंगे, जब उस मार्क तक आ जाए, जब आप ऐसे माउथ से सक करते हैं, तो माउथ से सक करने के लिए देखो थर्ड डायग्राम देखें, सक करने के तुरंत बाद आप अपनी 4 फिंगर देखो, दिख रही है ना आपको, 4 फिंगर को आप, जो आपकी पिपेट थी उसके टॉप के ऊपर आप ऐसे प्रेस कर देते हैं, और उसके बाद जो सॉल्यूशन है, जो मार्क है, मार्क तक लाने के लिए अपनी फिंगर को रोटेट करते हैं, ऐसे रोटेट करते हैं इसको, देखो ऐसे रोटेट करेंगे आप, ऐसे रोटेट करेंगे, ऐसे रोटेट करेंगे, ऐसे रोटेट करेंगे, ताकि आप ऊपर से एकदम 4 फिंगर को ऐसे नहीं हटा देंगे आप। अगर आपने 4 फिंगर को एकदम से ऐसे हटा दिया तो सारा सॉल्यूशन नीचे, आप दोबारा फिर सक करते रहे ऊपर से। तो आप क्या करेंगे, आप इसको रोटेट करेंगे 4 फिंगर को ऊपर करके, देखो नीचे से जो बल्ब होता है, बल्ब देखो, ये जो बल्ब आपको दिख रहा है यहाँ पे, देखो ये बल्ब जो दिख रहा है, इस बल्ब के पास हैंड को दूसरे को ले जाके ऐसे आप रोटेट करते चले जाएंगे, तो प्रेशर धीरे धीरे 4 फिंगर के ऊपर से रिलीज होगा और ड्रॉप बाय ड्रॉप आपका सॉल्यूशन आ जाएगा। एक प्रिकॉशन और है, जो बॉटम है आपकी पिपेट की, पिपेट की जो भी सॉल्यूशन आपने रिंस किया है, अभी खींचा है, आप इसको उसके अंदर डिप ही रखना, सॉल्यूशन के अंदर डिप करे रखना, 4 फिंगर को अब रोटेट करें, क्योंकि डिप करे करे आप ऊपर से रोटेट करेंगे तो आपका सॉल्यूशन एकदम नीचे नहीं जाएगा। तो ये प्रिकॉशन आपको जरूर रखनी है ताकि आपको बार बार सक ना करना पड़े। तो देखो दीज आर दी ब्यूरेट, ये ऑलमोस्ट 50 ml की हम लेबोरेटरी के अंदर यूज करते हैं। दीज आर दी लॉन्ग ग्रेजुएटेड ट्यूब्स with a stop cork which is present at the lower end and a broader upper end. These are generally of 50 ml which are generally been used in the laboratory, or these are generally been used during the titration. जो आपके नीचे टाइट्रेशन फ्लास्क है, अर्लनमेयर फ्लास्क है, उसके अंदर आपने सॉल्यूशन किसकी हेल्प से डाला था, आपने डाला था भी पिपेट की हेल्प से। उसके बाद आप ऊपर से ड्रॉप बाय ड्रॉप आप सॉल्यूशन ऐड करते चले जाते हैं, जो ब्यूरेट के अंदर आप फिल अप कर देते हैं। तो ब्यूरेट आर जनरली यूज्ड ड्यूरिंग द टाइट्रेशन, पिपेट आर जनरली बीन यूज्ड ड्यूरिंग द टाइट्रेशन। पिपेट की हेल्प से आप नीचे टाइट्रेशन फ्लास्क में पहले सॉल्यूशन ऐड करते हैं, ब्यूरेट की हेल्प से आप बाद में ऐड करते हैं, और बीच में आप इंडिकेटर यूज कर भी सकते हैं और ना भी करें, डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द सॉल्यूशंस। ये आपके पास आयरन स्टैंड है बेटा, दैट इज द आयरन स्टैंड। इस आयरन स्टैंड के ऊपर ये क्लैंप है, क्लैंप में भी ऑफ डिफरेंट साइज, डिफरेंट साइज के हो सकते हैं, डिफरेंट शेप के हो सकते हैं, और इसीलिए आप इनको डिफरेंट पर्पसेस के लिए यूज करते हैं। आपने देखा यहाँ पे देखो, ये जो राउंड बॉटम फ्लास्क, इसकी जो नेक थी, देखो ये नेक, नेक को देखो हमने यहाँ पे क्लैंप है बेटा, आयरन स्टैंड के ऊपर क्लैंप है, क्लैंप की हेल्प से इसको हम यहाँ पे टाई अप कर देते हैं, अदरवाइज तो राउंड बॉटम फ्लास्क तो बेटा गिर जाएगी ना इधर उधर। So to tie up the different glass apparatuses, we generally been use that iron stand with the clamp की हेल्प से, क्योंकि जितने भी हीटिंग पर्पसेस होते हैं हम हाथ में पकड़ के तो करते नहीं, तो जितने भी गिलास अपरेटस होते हैं उनको क्लैंप की हेल्प से, इस पर्टिकुलर स्टैंड की हेल्प से हम उनको टाई अप कर देते हैं, और फिर इसका जो साइज है ऊपर नीचे जो करना है वो हम करते रहते हैं, उसको वहां पे हम एडजस्ट कर सकते हैं। जैसे आपने यहाँ पे देखा, तो जो आयरन स्टैंड विद ए क्लैंप जनरली बीन यूज्ड टू टाई अप, बोलो किसको क्लैंप करने के लिए आपने यहाँ पे यूज किया, दैट इज द मेजरिंग फ्लास्क। ये मेजरिंग फ्लास्क है, यहाँ पे हमने पीछे बताया था ना कि जितने सॉल्यूशन, स्टैंडर्ड सॉल्यूशन मेजरिंग फ्लास्क में के अंदर ही आप बनाते हैं, इसको टाई अप करने के लिए, इसको क्लैंप करने के लिए आप यूज कर सकते हैं। टेस्ट ट्यूब को
क्लैंप करने के लिए आप यूज कर सकते हैं। देखो आप ध्यान से देखें, ये एक एक्सपेरिमेंट है जिसमें हमें टाइम नोट डाउन करना पड़ता है। ये हमारे पास ओस्टवाल्ड बेटा विस्कोमीटर है। अब ध्यान से देखें, ये जो ग्रीन सॉल्यूशन हमने फिलअप कर रखा है यहाँ पे, देखो एक एंड से हमने इसको सकअप करते हैं, देखो दूसरे पहले एक एंड से डाला और ऊपर से डाला एक मार्क से, देखो दूसरे मार्क तक जब सॉल्यूशन आए वो टाइम नोट अप करते हैं आप। ओस्टवाल्ड विस्कोमीटर के अंदर विस्कोसिटी ऑफ द, सबसे पहले वाटर की डिटरमाइन करते हैं, उसके बाद गिवन सॉल्वेंट की डिटरमाइन करते हैं, उसके दौरान आप करते क्या है, यू विल जस्ट नोट डाउन द टेम्परेचर विद द हेल्प ऑफ दैट स्टॉप वॉच। ये स्टॉप वॉच है बेटा, और ये स्टॉप वॉच देखो जो अभी मैंने आपके सामने रखी है, जो आपको दिख रही है चलती हुई, ये मैं देखो आपको अभी दिखाता भी हूँ, आप बड़े ध्यान से देखेंगे स्टॉप वॉच को। देखो बिल्कुल ऐसी ही होती है जैसे मैंने अभी आपको दिखाया। अब बेटा ध्यान से देखें, दैट इज अ स्टॉप वॉच। देखिए बेटा स्टॉप वॉच, एक सेकेंड रुके मैं थोड़ा क्लियर करता हूँ। अब देखिए बेटा, अब आपको दिख गई होगी, देखो दैट इज अ स्टॉप वॉच। अब देखो जैसे मैं ऊपर से इसको ऑन करूंगा, देखो बेटा ये स्टार्ट हो गई स्टॉप वॉच। तो जैसे ही एक मार्क से, देखो ये ऊपर एक मार्क था बेटा, देखो ये एक मार्क से दूसरे मार्क तक जब सॉल्यूशन पहुंचे, तो वैसे ही देखो मैं इसको दोबारा प्रेस करूंगा ना बेटा, देखो रुक गई आपकी टाइम, हम एकदम से टाइम नोट कर लेंगे। क्लियर हो गया बेटा? तो बड़ी सिंपल ये स्टॉप वॉच होती है, दैट जनरली बीन यूज्ड इन द प्रीवियस टाइम। नाउ ए डेज ऑल द स्टूडेंट हैव द मोबाइल फोन, तो अपने मोबाइल फोन के अंदर जब एक्सपेरिमेंट करते हैं उसको वो ऑन कर लेते हैं टाइम, ठीक है ना, उसमें स्टॉप वॉच अपने आप ही होती है। तो अदरवाइज आप इस स्टॉप वॉच को भी यूज कर देते हैं ड्यूरिंग द नोट डाउन ऑफ द टाइम इन सेकंड्स, सेकंड के अंदर ये टाइम हम नोट डाउन करते हैं बेटा यहाँ पे। क्लियर हो गया? सो दैट इज द स्टॉप वॉच। तो अब मैंने क्या बताया, ओस्टवाल्ड विस्कोमीटर इज द एपरेटस हियर, जिसके अंदर ये दो मार्क लगे होते हैं। देखो वन मार्क देखो ये ऊपर लगा हुआ है यहाँ पे, ये सेकंड मार्क देखो नीचे है। यहां से सबसे पहले आप सॉल्यूशन एंटर करते हैं, उसके बाद आप यहां से आप सक करते हैं, सक करेंगे तो सॉल्यूशन इस मार्क से थोड़ा ऊपर आ जाएगा। फिर वो जैसे ही इस अपर मार्क तक यहाँ पे सॉल्यूशन आए, जो भी वाटर स्टार्ट में आप लेते हैं स्टैंडर्ड सॉल्वेंट, आप टाइम स्टॉप वॉच को ऑन कर देंगे। जैसे ही नीचे तक पहुंचे आप स्टॉप वॉच को स्टॉप कर देंगे और आप टाइम इन सेकंड नोट डाउन कर लेते हैं। फिर आपका जो पर्टिकुलर फार्मूला है आप उसमें अपने टाइम को फीड करेंगे। एक बार आप इसमें वाटर फिलअप करते हैं, दूसरी बात अननोन सॉल्वेंट आप यूज करते हैं, और बल्कि आप इस एक्सपेरिमेंट को मिक्सचर ऑफ सॉल्वेंट के लिए भी यूज कर सकते हैं टू डिटरमाइन द कंपोजिशन ऑफ द मिक्सचर। मिक्सचर है उसके अंदर मान लीजिए वाटर प्लस दूसरा कोई सॉल्वेंट आपने मिक्सअप कर रखा है, टीचर कहे व्हाट इज द कंपोजिशन, तो आप इस एक्सपेरिमेंट की हेल्प से कंपोजिशन ऑफ द मिक्सचर भी डिटरमाइन कर सकते हैं। जो विस्कोसिटी है, जैसे मैंने बताया, विस्कोसिटी एक मेजर रोल प्ले करती है हमारी डे टू डे लाइफ के अंदर। आपको पता है देखो ये डिफरेंट जो इंजन होते हैं उसके अंदर देखो ये फ्लूइड हम डालते हैं, अदरवाइज फ्रिक्शन हो जाएगा। आपकी जो ब्लड होता है उसकी खास विस्कोसिटी होनी चाहिए, अगर विस्कोसिटी उससे ज्यादा हो जाए, ब्लड गाढ़ा हो जाए, तो वो हमारे लिए डेंजरस हो सकता है। बहुत पतला हो जाए तो वो डेंजरस हो सकता है। जो पेंट है, पेंट जो हम यूज करते हैं उसकी कुछ खास विस्कोसिटी होनी चाहिए। आप देखो ये घर में जो सोप, लिक्विड सोप यूज करते हैं, इसकी खास विस्कोसिटी होनी चाहिए। घर के अंदर जो ऑयल आप यूज करते हैं, देखो इस कंटेनर के अंदर आप देख रहे हैं, देखो ये ऑयल, उसकी खास विस्कोसिटी होनी चाहिए। तो मीन्स विस्कोसिटी आपकी डिफरेंट पर्पसेस के लिए अलग अलग जगह के ऊपर हर एक लिक्विड की विस्कोसिटी अलग अलग होनी चाहिए एट द डिफरेंट पर्पसेस। फॉर द डिफरेंट पर्पसेस द विस्कोसिटी ऑफ द लिक्विड विल बी डिफरेंट, द विस्कोसिटी ऑफ द सब्सटेंस विल बी डिफरेंट, वो डिफरेंट होगी। नेक्स्ट एपरेटस दैट इज द स्टेलेगोमीटर। बेटा ये स्टेलेगोमीटर होता है, इसके अंदर सिर्फ एक ही बल्ब होता है, नीचे देखो कैपिलरी लगी होती है। आप नीचे जो भी लिक्विड है आप इसको डिप करेंगे या इस बीकर को ऊपर उठा लेंगे और ऊपर से आप सक करेंगे। इसके ऊपर भी लाइक दैट ऑफ द विस्कोमीटर, जिसके अंदर तो दो आपके कर्व बैंड भी था बेटा, ये तो स्टेट है जिसके अंदर एक बल्ब है, एक ऊपर मार्क होगा बेटा यहाँ पे, एक नीचे होगा। तो जैसे ही आप सक करेंगे ऊपर वाले मार्क से ऊपर चला जाए लिक्विड और आप उसको रिलीज करें, जैसे अपर मार्क तक पहुंचे, आप क्या करेंगे बेटा, नंबर दो मेथड होते हैं यहाँ पे। फर्स्ट क्या, नंबर ऑफ ड्रॉप्स आएंगी, उनको आप काउंट करना शुरू करें, नीचे वाले मार्क तक पहुंचे तब तक देखें कितनी ड्रॉप्स बन गई, हाउ मेनी ड्रॉप्स आर फॉर्म्ड, नंबर ऑफ ड्रॉप्स आप काउंट करते हैं। सेकंड आप क्या करते हैं, ऊपर वाले मार्क से लेके नीचे वाला जो मार्क है वहां तक का जो लिक्विड जितना भी निकला, उसको जो मैंने बताया था स्पेसिफिक ग्रेविटी बॉटल या मेजरिंग जो बोतल होती है उसके अंदर आप कलेक्ट कर लेते हो नंबर ऑफ ड्रॉप्स को। नंबर ऑफ ड्रॉप आप वैसे भी फिक्स कर सकते हैं, मान लीजिए अपर मार्क तक लिक्विड आ गया यहाँ तक,
उसके बाद आप वो सिर्फ 10 ड्रॉप्स लेनी है, आप 10 ड्रॉप्स वाटर की लें, ऐसे दोबारा कोई अननोन लिक्विड आप इसमें फिलअप करें, 10 ड्रॉप्स आप दूसरे लिक्विड की ले लें, लेकिन स्टार्टिंग पॉइंट देखो अपर मार्क से ही करना है। तो फिर आपका जो पर्टिकुलर फार्मूला उसके अंदर आप फीड अप कर देंगे और सरफेस टेंशन आप डिटरमाइन कर सकते हैं। सो दैट इज द स्टेलेग्मोमीटर इंस्ट्रूमेंट apparatus which is generally been used to determine the surface tension of the unknown liquid, और आप वही परसेंटेज कंपोजिशन भी निकाल सकते हैं। क्लियर हो गया बेटा? तो दो टेक्निक होती है स्टेलेगोमीटर की हेल्प से, ड्रॉप नंबर मेथड, ड्रॉप वेट मेथड। ड्रॉप नंबर, एक मार्क से दूसरे मार्क तक जाते वक्त नंबर ऑफ ड्रॉप्स काउंट करना, कितनी ड्रॉप्स नीचे आ गई, एक बार वाटर की एक बार अननोन लिक्विड की। ड्रॉप वेट मींस ऊपर वाले मार्क से जब लिक्विड नीचे आना शुरू हो तो आप छोटा सा जो आपकी मेजरिंग फ्लास्क जो आप लेंगे उसके अंदर ड्रॉप्स आप डाल लेंगे, वो आपके ऊपर डिपेंड है, 10 ड्रॉप्स डालें उसमें, 12 डालें, 13 डालें, वट एवर मे बी द नंबर ऑफ ड्रॉप्स, लेकिन जितनी ड्रॉप्स आप वाटर की डालें उतनी ड्रॉप्स दूसरे लिक्विड की आपको डालनी पड़ती है। तो सिंपल काम आप करते हैं, दैट apparatus इज कॉल्ड द स्टेलेग्मोमीटर। नेक्स्ट हेज टेस्ट आप करते हैं बेटा। हेज टेस्ट किसके लिए करते हैं? यानी किसी को जो जॉन्डिस हुआ है या नहीं हुआ उसके लिए। उसमें करते क्या है कि बाइल सॉल्ट, जनरली क्या होता है, बाइल सॉल्ट क्या करते हैं, जो हमारे लीवर के अंदर से, गॉल ब्लैडर के अंदर से वहां से निकल के और वो डाइजेशन प्रोसेस को चलाते हैं। सरफेस टेंशन, जो भी हम चिकने पदार्थ जितने भी खाते हैं, ऑयली सब्सटेंस खाते हैं, फैटी सब्सटेंस हम खाते हैं, हमारे इंटेस्टाइन के अंदर जाके उनका डाइजेशन होना होता है, इमल्सिफिकेशन प्रोसेस चलती है जिसकी वजह से उसका डाइजेशन होना होता है। वो तब होता है, कब होता है, वो डिपेंड करता है जो बाइल सॉल्ट ने अपना प्रॉपर एक्शन किया कि नहीं किया, वो एक्सेस में निकले कि नहीं निकले। तो मींस इफ द सल्फर पार्टिकल्स रिमेन ऑन द सरफेस ऑफ द यूरिन, बाइल सॉल्ट आर एब्सेंट, मीन द टेस्ट गिवन इज ए नेगेटिव रिजल्ट फॉर द जॉन्डिस। तो इस टाइप से हम जॉन्डिस का पॉजिटिव टेस्ट या नेगेटिव हम पता लगा लेते हैं, दैट इज कॉल्ड द हेज टेस्ट। जैसे आपने देखा होगा बच्चे, ये जो क्या नाम है, बैलून्स जो बनाते हैं इस टाइप से ग्लो करके, तो यहाँ पे कौन सा रोल प्ले हुआ, सरफेस टेंशन। ये आप बच्चे काफी बार खेलते हैं। हम उसके बाद नेक्स्ट सोप, जो अब कपड़े का जो क्लींजिंग एक्शन होता है, तो सरफेस टेंशन वहां पे अपना रोल प्ले करता है सोप एंड डिटर्जेंट्स की हेल्प से। ये हम अलग से लेक्चर में भी, आपकी क्लास के अंदर भी अलग से भी आप पढ़ चुके होते हैं, ये एप्लीकेशन पार्ट हमने बताया था। सो दैट एपरेटस हियर इज द कंडेंसर। ये कंडेंसर है, वाटर पास करें तो आपका कहलाएगा वाटर कंडेंसर, अगर वाटर पास ना करें देन सिंपली सेम कंडेंसर इज कॉल्ड एज द, बोलो क्या कहलाएगा आपका, एयर कंडेंसर। वो फिर आपका एयर कंडेंसर बेटा कहलाता है। क्लियर हो गया बेटा? एक चीज और ध्यान रखें, मैंने पहले बताया था कि जो टैप है लोअर एंड के थ्रू वाटर इन करेंगे और अपर एंड के थ्रू वाटर एंटर करेंगे। जो टैप होती है, टैप से जो वाटर एंटर करेगा इस जैकेट के अंदर वो नीचे से करना चाहिए, ऑपोजिट आप कभी ना करें। कभी आप ऊपर वो वाली रबर ट्यूब ना लगा दें जिससे वाटर एंटर कर रहा है वो नीचे की तरफ आ रहा है, आप ऐसा कभी नहीं करेंगे, क्योंकि ठंडा पानी नीचे से जाना चाहिए, ऊपर हीटअप करके वो निकलना चाहिए। क्योंकि जब आप नीचे हीटअप करेंगे आपके राउंड बॉटम फ्लास्क के अंदर जो आपके रिएक्टेंट है, तो जो वेपर जाएंगे हीटअप होके वो ऊपर की तरफ जा रहे हैं। तो इसलिए वाटर नीचे से कोल्ड हमें देना है, नीचे से कोल्ड, ताकि कंडेंसेशन जो वेपर्स है वो बाहर ना जाए, नीचे ही कंडेंसेशन स्टार्ट हो जाए नीचे से, इसलिए हमें कोल्ड वाटर नीचे से ही देना है। दीज आर दी सेपरेटिंग फनल बेटा, जो मैंने पीछे बताया था स्टीम डिस्टिलेशन के दौरान, दैट इज अ सेपरेटिंग फनल। देखो इसके अंदर आप करेंगे दो सेपरेट लेयर, देखो यहाँ पे बन चुकी है। पहले देखो हमने शेक किया, उसको हमने टैग किया, किसके ऊपर, क्लैंप के ऊपर, जैसे यहाँ पे हमने दिखा दिया, इस क्लैंप कर दिया हमने इसको। उसके बाद देखो नीचे, देखो ये नीचे से लिक्विड आपका निकलना शुरू हो गया। टू लेयर कैन बी इजिली बी सेपरेटेड विद द हेल्प ऑफ दैट सेपरेटिंग फनल। यहाँ पे कौन है बेटा, दीज आर दी टोंग्स एंड द फोर्सेप। ये टोंग है, टोंग को हम जनरली यूज करते हैं किसी भी चीज को ग्रेस करने के लिए। दे आर जनरली यूज टू ग्रेस द हॉट वेसल्स, हॉट वेसल्स को ग्रेस करने के लिए आप जनरली यूज करते हैं। और फोर्सेप को किस लिए यूज करते हैं, कोई छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं किसी सब्सटेंस के, कोई क्रिस्टल बन गए, उनको उठाने के लिए जनरली दीज फोर्सेप्स आर बीन यूज्ड। तो आपकी टोंग को आप हमेशा यूज करेंगे। टेस्ट ट्यूब होल्डर भी आते हैं अलग से, उनको टेस्ट ट्यूब को पकड़ने के लिए यूज कर सकते हैं, या इन टोंग्स को यूज कर सकते हैं। इन टोंग्स को आप राउंड बॉटम फ्लास्क को पकड़ने के लिए यूज कर सकते हैं। मींस किसी भी हॉट अप्लायंस को आप डायरेक्टली टच नहीं करेंगे। उसके बाद स्पेचुला, देखो ये स्पेचुला है। स्पेचुला के ड्यूअल नेचर होता है बेटा इसका। कैसे, जो वन एंड है देखो ये स्पून जैसा है,
वन एंड स्पून जैसा है, अदर एंड देखो नाइफ जैसा है। तो जो अदर एंड है नाइफ जैसा, जैसे हम यहाँ पे सोडियम के पीस को लैब के अंदर जब काटते हैं तो इसी को यूज कर लेते हैं हम, स्पेचुला के इस एंड से हम उसको कट कर देते हैं जैसे सोडियम पीस को। और दूसरे एंड के थ्रू जब भी हम कोई सब्सटेंस, कोई सॉल्ट, कोई कंपाउंड हमें लेना होता है किसी कंटेनर के अंदर से, तो इस एंड के थ्रू हम उसको लेते हैं। जैसे आपने देखा, देखो सोडियम एल्कली मेटल है, वाटर के अंदर डालेंगे तो शार्प रिएक्शन टेक्स प्लेस। ये प्रिकॉशन आपको रखनी पड़ती है। ऐसे गेम कई बार बच्चे खेल लेते हैं, ये कोई गेमिंग प्रोसेस नहीं होती। केमिस्ट्री लैब इज नॉट फॉर द गेम, तो आप ऐसा कभी भी नहीं करेंगे। तो ये प्रिकॉशनरी वे मैंने बताया है, बच्चे ऐसा कई बार कर देते हैं, आप ऐसा नहीं करेंगे। आपके काफी एसिड बेसिक रेडिकल के अंदर हमें यू शेप की ट्यूब की जरूरत पड़ती है, उसको हम इस टाइप से देखो बेंड कर लेते हैं। एक टेस्ट ट्यूब के अंदर एक एंड एंटर करेंगे, दूसरा एंड दूसरी टेस्ट ट्यूब के अंदर, कि एक टेस्ट ट्यूब में रिएक्शन चली, गैस जो निकली, दूसरे टेस्ट ट्यूब के अंदर कोई सॉल्यूशन था उसके अंदर पास करते हैं, जैसे कई बार CO2 गैस, SO2 गैस। उस वक्त हम ये जो ट्यूब है यू शेप ट्यूब कैसे बनाए, तो इस टाइप से यू शेप ट्यूब को हम बना देते हैं विद द हेल्प ऑफ दैट हीटिंग। हीटिंग हम करके हम ऐसा कर देते हैं। लिटमस पेपर, लिटमस पेपर दो टाइप के होते हैं, ब्लू लिटमस, रेड लिटमस। देखो यहाँ पे हमने ब्लू लिटमस जैसे एसिडिक सॉल्यूशन में डाला, इट बिकम्स रेड। अगर ये सॉल्यूशन एसिडिक है और ब्लू लिटमस को आप एंटर करेंगे, डिप करेंगे इसमें, तो अगर वो रेड हो जाए तो सॉल्यूशन इज एसिडिक। इफ इट रिमेन ब्लू तो सॉल्यूशन इज नॉट एसिडिक, वो एसिडिक नहीं है। एंड वाइस वर्सा फॉर द बेसिक सॉल्यूशन, उसके लिए आप रेड लिटमस यूज कर देते हैं। और किसी सॉल्यूशन की पीएच को डिटरमाइन करने के लिए भी आप यूज कर देते हैं। जो आप लिटमस पेपर लेते हैं उसका कलर कैसा आया, हमारे पास लेबोरेटरी के अंदर एक चार्ट होता है जिसमें कलर दे रखे हैं कि ब्लू लिटमस लिटमस पेपर को जब आप डिप करेंगे किसी सॉल्यूशन में, अगर डिप होने के बाद उसका कलर कैसा आया, कलर ये इतना ऐसा आ गया, ये आ गया, ये आ गया, डिफरेंट कलर की रेंज है, तो उससे हम पीएच को डिटरमाइन करते हैं। वहां पे लिख रखा होता है कि अगर ऐसा कलर आए तो पीएच इतनी है सॉल्यूशन की, ये कलर आ जाए तो पीएच की सॉल्यूशन ये है। तो इस टाइप से हम यूज कर लेते हैं पीएच स्ट्रिप्स को। कीप सेपरेटर्स, कीप सेपरेटर्स क्या काम आता है, फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द गैस। जनरली हम अपने एसिड बेसिक रेडिकल के दौरान, बेसिक रेडिकल के ग्रुप नंबर 2 की डिटेक्शन के दौरान हमें H2S गैस की रिक्वायरमेंट होती है, या कोई और भी डिफरेंट टाइप ऑफ जितनी भी गैसेस हैं उनको हम कीप सेपरेटर्स की हेल्प से प्रिपेयर कर सकते हैं। लेकिन वो एक अलग बात के, ये जो गैस है ये ज्यादा प्यूरिफाइड फॉर्म में यहाँ पे नहीं बनती, तो अल्ट्रा प्योर फॉर्म के लिए तो और भी डिफरेंट टेक्नोलॉजी है लार्जर स्केल के ऊपर। लेकिन लेबोरेटरी पर्पसेस के लिए जब हम इनको यूज करें फॉर द डिटेक्शन ऑफ डिफरेंट एसिड, डिफरेंट बेसिक रेडिकल्स, तो हम कीप सेपरेटर्स को यूज कर लेते हैं। तो ये कीप सेपरेटर्स जो डिजाइन किया था, इन्वेंट किया था बाय दैट डच फार्मासिस्ट, दैट इज द पीटर्स जेक्स, इसलिए इसके नाम के बेसिस के पे इसको कीप सेपरेटर्स कहा जाता है। इसमें करते क्या है बेटा, जो देखो ये दो पार्ट है, जो अपर पार्ट दिख रहा है ना इसको हम अलग कर सकते हैं। देखो ये ऊपर, देखो ये वाला पार्ट, तो नीचे वाले दो पार्ट रह जाएंगे। तो जो ये वाला पार्ट है, देखो ये वाला जो पार्ट आपको दिख रहा है, इसके अंदर हम ये आयरन सल्फाइड डालते हैं मिड पार्ट के अंदर। फिर ऊपर वाला पार्ट फिर हम इसके ऊपर रख देते हैं, अभी हम आपको दिखाएं भीगे रख के। और उसके बाद हम ऊपर से सॉल्यूशन डालना शुरू करते हैं, एसिडिक सॉल्यूशन। तो एसिड सॉल्यूशन जैसे हम नीचे ऐसे डालते चले जाएंगे, इसमें प्लग देखो फिलअप है, तो जैसे हम डालेंगे ये टच में आएगा आयरन सल्फाइड के, तो गैस विल प्रोड्यूस, दैट इज द H2S गैस विल प्रोड्यूस। और H2S गैस यहाँ से जिस भी पर्पज के लिए हमें पास करना है H2S गैस को, हम वहां पे इसको पास कर लेते हैं। तो दैट इज द कीप सेपरेटर्स, दोबारा से मैंने आपको दिखाया, ये पूरी डिटेल हमने यहाँ पे लिख रखी है, आप नोट डाउन कर सकते हैं। अब आप ये एक्सपेरिमेंटेशन देखेंगे, देखो मैंने बताया था नहीं अपर पोर्शन, देखो मैंने इसके ऊपर रख दिया। 3 पार्ट होते हैं, 3 चैम्बर होते हैं इसके अंदर, देयर आर 3 चैम्बर्स। फिर से देखें आप, टू चैम्बर्स, ये अपर चैम्बर हो गया, टॉप मिड एंड द लोअर चैम्बर। यहाँ पे हमने ये प्लग डाल दिया, ग्रीस लगा के हम डाल देते हैं, वैक्यूम ग्रीस जिसे कहते हैं, ताकि ये लूज ना रहे यहाँ से। यहाँ पे हम सॉलिड रिएक्टेंट डालेंगे, ऊपर से हम एसिड डालेंगे, या आप कोई और रिएक्शन आपको करनी है, मान लीजिए आपको हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करनी है, तो उसके लिए आप क्या करेंगे बेटा, फॉर एग्जांपल आप एल्यूमिनियम लेंगे, आप ध्यान से देखें, और उसके अंदर आप KOH का सॉल्यूशन बनाएंगे। देखो ये KOH डाल रहे हैं बेटा हम ऊपर से, KOH, ये KOH है, दैट इज द पाउडर्ड फॉर्म ऑफ KOH। KOH को हमने एकदम क्रश कर लिया, और फिर हम इसके अंदर बेटा वाटर डाल देंगे। देखो अब हमने इसे वाटर डाल के इसका सॉल्यूशन बना लिया, ठीक हो गया बेटा, ये क्लियर सॉल्यूशन बन जाएगा।
और क्लियर सॉल्यूशन बेटा बनने के बाद दोबारा से देखें बेटा, क्लियर सॉल्यूशन जैसे बन जाएगा, देखो इसमें हमने ये एल्यूमिनियम डाल दिया, एल्यूमिनियम फॉयल डाल दी, ये क्लियर सॉल्यूशन हमने बना दिया KH को थोड़ा हीट करके। अब ऊपर से हम डालेंगे बेटा, देखो इसमें KH सॉल्यूशन जैसे हम डालेंगे इसमें, now the reaction will takes place between the aluminum and the KH, resulting in the formation of the पोटाशियम एल्यूमिनेट बनेगा एक तो, और दूसरा हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हो जाएगी बेटा। अभी हम देखो फर्दर डालेंगे ऊपर से KH, देखो ये मार्क है जहां तक हमने KH सॉल्यूशन डाल दिया। अब आप देखें, देखो नाउ द बबलिंग विल स्टार्ट, हमने क्लोज कर दिया इस एंड को। अब देखेंगे धीरे धीरे, देखो एल्यूमिनियम की रिएक्शन बेटा किसके साथ हो गई है यहाँ पे, KH के साथ, और जो KH का लेवल है वो डिक्रीज होता चला जाएगा बेटा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन गैस बन जाएगी ऊपर, हाइड्रोजन गैस विल कॉज ए प्रेशर ऑन द सरफेस ऑफ द लिक्विड, और ये प्रेशर नीचे जाके और दोबारा से जो बिल्कुल अपर एंड था बिल्कुल बेटा, देखो ऊपर वाले टॉप के एंड के ऊपर देखे, बीच में देखो टॉप एंड का लोअर एंड के साथ कनेक्शन है डायरेक्ट, बीच में मिडल एंड जहां पे उसका अपर और अपर एंड के साथ कोई कनेक्शन नहीं, इसलिए देखो ये ऊपर राइज होना देखो शुरू हो गया, क्योंकि यहाँ पे आपकी हाइड्रोजन गैस इकट्ठी हो गई। जैसे हम यहाँ से प्रेशर रिलीज करेंगे हाइड्रोजन गैस बाहर, वो ऊपर वाला जो KH सॉल्यूशन वो दोबारा से नीचे आ जाएगा। देखो ये रिएक्शन चल रही है, आ गया बेटा समझ में? सो दैट इज द कीप सेपरेटस। देखो ये डिफरेंट टाइप ऑफ गैसेस को प्रोड्यूस करने के लिए कीप सेपरेटस को यूज किया जाता है। सो दैट इज अ सो मच लार्ज लिस्ट, ये इतनी बड़ी लिस्ट है, आप किसी को भी किसी भी गैस को बना सकते हैं, हाइड्रोजन गैस को। देखो ये आगे हमने रिएक्टेंटों के नाम लिख रखे हैं, ये जितनी डॉट लगा रखी है सभी गैस, हाइड्रोजन गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस, एसिटिलीन, मीथेन, क्लोरीन, ऑक्सीजन, ओजोन, नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, अमोनिया, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, और आगे रिएक्टेंटों के नाम है बेटा। ये आप इसको कीप सेपरेटर्स में डालें और उस गैस को प्रोड्यूस कर लें। HCl गैस, हाइड्रोजन सिलिनाइड गैस, मिथाइल एसिटिलीन गैस एंड सो ऑन। देखो फॉस्फिन गैस, आर्सिन, स्टिबलिन, सिलेन, जर्मेन, स्टेबिन, बोरेन, हाइड्रोजन फ्लोराइड, हाइड्रोजन ब्रोमाइड, यानी कितनी सारी लॉन्ग लिस्ट है। कीप्स apparatus की हेल्प से आप सभी गैसेस को प्रोड्यूस कर सकते हैं। क्लियर हो गया बेटा? दैट इज अ लॉन्ग लिस्ट, दैट इज अ वेरी लॉन्ग लिस्ट। नाउ नेक्स्ट apparatus दैट इज द डेसिकेटर, ये ड्राइंग अप पर्पसेस के लिए आप इसको यूज करते हैं, दैट इज द डेसिकेटर हियर। जब भी आपका कोई प्रोडक्ट बन जाता है उसके अंदर कोई नमी है तो आप क्या करते हैं, इस डेसिकेटर के अंदर आप रख देते हैं। ऊपर जो इसकी लिड है, देखो ये लिड है, इस लिड को आप हटाते हैं, इसके ऊपर वैक्यूम ग्रीस लगाते हैं, एयर लीकेज नहीं होनी चाहिए। फिर हम क्या करेंगे, देखो ये जो बॉटम है यहाँ पे आप ड्राइंग एजेंट डालते हैं, और ये जो मिड पोर्शन है देखो यहाँ पे परफोरेटेड, इसके ऊपर आप जो भी आपके पास चाइना डिश है जो भी है उसके अंदर आपका प्रोडक्ट जो भी बन गया आप यहाँ पे रखते हैं। अब इस प्रोडक्ट के अंदर जितनी भी नमी है, मॉइस्टनेस है, उसको नीचे जो हम ड्राइंग एजेंट रखेंगे, कैल्शियम क्लोराइड .6:2 वो ले लिया हमने, इसके अंदर सिलिका ले लिया, जो भी आपने लिया वो क्या करेगा, इसके अंदर जितना भी जो मॉइस्चर है उसको ये क्या कर लेंगे, एब्जॉर्ब कर लेगा नीचे जो ड्राइंग एजेंट हमने लिया। सो दैट इज द पर्पस ऑफ दैट डेसिकेटर। कैल्शियम क्लोराइड आप यूज कर सकते हैं, नीचे सल्फ्यूरिक एसिड आप यूज कर सकते हैं। में ड्राइंग एजेंट बेटा हमें नीचे यहाँ पे रखना है, नीचे ड्राइंग एजेंट रखा है। उसके बाद ये परफोरेटेड प्लेट हमने रखी है, इस परफोरेटेड प्लेट के ऊपर हमने हमारा प्रोडक्ट रख रखा है, चाइना डिश के अंदर रख के या किसी बीकर के अंदर डाल के, और ऊपर हमने लिड लगा दी, और लिड के यहाँ पे पहले वैक्यूम ग्रीस लगाते हैं, कोई एयर का पैसेज नहीं छोड़ा हमने। सो दैट इज द पर्पस ऑफ द डेसिकेटर। गिलास रोड, गिलास रोड किस लिए करते हैं बेटा, फिल्ट्रेशन के दौरान गिलास रोड के ऊपर से आप सॉल्यूशन को डालते हैं। जब भी आप किसी सॉल्यूशन को बना रहे हैं टू मिक्स अप द डिफरेंट सॉल्यूशन, आप गिलास रोड को यूज कर लेते हैं। सो दैट इज द पर्पस ऑफ द गिलास रोड। ये आयरन स्टैंड है, ये क्लैंप है, ये बीकर है, ये फनल है, ये फिल्टर पेपर है, ऊपर ये आपकी गिलास रोड है बेटा। सो दैट इज अ रैक जिसके अंदर आपकी रिएजेंट्स बोतल रखे डिफरेंट, दीज आर द डिफरेंट रिएजेंट बोतल, जिसमें हमने डिफरेंट रिएजेंट्स प्रिपेयर करके लेबोरेटरी के अंदर रख रखे होते हैं फॉर द फर्दर यूज इन द डिफरेंट एक्सपेरिमेंटेशन। सो दैट इज द रैक कंटेनिंग द डिफरेंट रिएजेंट बोटल्स। सो दीज आर दी वॉश बोतल, यानी वॉश बोतल होती है, इसके अंदर फॉर एग्जांपल हमें वाटर कहीं पे यूज करना है, ड्रॉप बाय ड्रॉप डालना है। हमने बताया था ना मेजरिंग फ्लास्क जो होती है उसको लास्ट में जब लेवल अप करते हैं, लास्ट में जब हमें ड्रॉप बाय ड्रॉप कोई वाटर डालना है तो क्या करेंगे, आप वॉश बोतल की हेल्प से इसमें वाटर ऐड कर देंगे, नीचे इसको प्रेस करेंगे, ऊपर से बिल्कुल ड्रॉप बाय ड्रॉप आपका वाटर आएगा, और उसको लेवल अप करने के लिए। सो टू लेवल अप द सॉल्यूशन वी जनरली यूज दीज वॉश बोटल्स। दीज आर ऑल्सो द पॉलीथीन बोतल, वॉश बोतल की तरह ही इसमें ऊपर वो एंड नहीं लगा रखा हमने,
वो ट्यूब नहीं लगा रखी। सो दैट दीज आर दी सिंपल पॉलीथीन बॉटल। ये थर्मोडायनेमिक्स के जो एक्सपेरिमेंट होते हैं टू डिटरमाइन द हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, टू डिटरमाइन द हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन बिटवीन द स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस। उस वक्त आप क्या करते हैं, वाटर इक्विवेलेंट भी निकालना होता है, तो इसके अंदर सबसे पहले आप कोल्ड वाटर डालते हैं, बीच में इसमें पोर करके ऊपर थर्मोमीटर आप डाल देते हैं, कोल्ड वाटर का टेम्परेचर लिया, एक में जो कोल्ड वाटर का टेम्परेचर है, दूसरे में हॉट वाटर का टेम्परेचर आप ले लेते हैं। एक बोतल ऐसी ले ली जिसमें NH डाल दिया, उसका टेम्परेचर लिया, एक में अपने HCl लिया, उसका टेम्परेचर लिया। तो HCl को मान लीजिए आपने एडअप कर दिया NH वाली बोतल के अंदर, तो जैसे एडअप किया तो व्हाट इज द चेंज इन टेम्परेचर, उसको नोट डाउन कर लिया। सो दीज आर द पॉलीथीन बोतल टू डिटरमाइन द टेम्परेचर, टेम्परेचर को डिटरमाइन करने के लिए ड्यूरिंग व्हाट इज द चेंज इन टेम्परेचर ड्यूरिंग द न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेसेस। सो दैट इज द TLC जार। बेटा ये TLC जार है, पेपर क्रोमेटोग्राफी के दौरान भी जो यूज करते हैं कि वो जार है। बीच में जो आपने यूज किया दैट इज द क्रोमेटोग्राफिक स्ट्रिप। पेपर स्ट्रिप जो है ये वाटमैन फिल्टर पेपर की बनी हुई होती है, ऊपर लिड लगी हुई है बेटा। नीचे इसके अंदर आपने जो सॉल्वेंट यूज किया है जिसे मोबाइल फेज कहते हैं। आपने स्पॉटिंग की, मैंने पीछे आपको बताया था ना, कैपिलरी ट्यूब का बीच में से हीटअप करके उसके नैरोइंग ऑफ द कैपिलरी ट्यूब मैंने पीछे आपको बताया था। उस नैरोइंग वाली कैपिलरी ट्यूब के थ्रू ही हम यहाँ पे स्पॉटिंग करते हैं, मोबाइल फेज के अंदर इसको रख देते हैं। मोबाइल फेज रन अप करता है विद द कैपिलरी रिएक्शन और डिफरेंट कंपोनेंट एडजॉर्प्शन के बाद ये डिजॉर्प्शन प्रोसेस चल रही है, और ये डिफरेंट लेवल तक आपके सॉल्यूशन चले जाते हैं, आपके कंपोनेंट चले जाते हैं, हम सेपरेट कर पाए। सो क्रोमेटोग्राफी इज ए सेपरेशन टेक्निक। इट इज द प्रोसेस टू डिटरमाइन द हाउ मेनी कंपोनेंट आर प्रेजेंट इन द गिवन मिक्सचर। तो जितने स्पोर्ट्स आएंगे उतने ही कंपोनेंट है उसके अंदर। इट इज ऑल्सो बीन यूज टू डिटरमाइन द टू चेक द प्योरिटी ऑफ द कंपाउंड। कोई कंपाउंड उसमें एक ही स्पोर्ट आ गया तो कंपाउंड प्योर है, एक से ज्यादा स्पोर्ट आए तो एक स्पोर्ट उस कंपाउंड का रिमेनिंग स्पोर्ट आर ऑफ इम्प्योरिटी। तो ये TLC जार था बेटा। नेक्स्ट दैट इज द स्प्रेयर। ये स्प्रेयर है। कई बार जब हम TLC या पेपर क्रोमेटोग्राफी करते हैं तो आप सेकंड डायग्राम में देखें, देखो ये डिफरेंट 1 2 3 4 इतने स्पॉट करके एक लार्ज क्रोमेटोग्राफी जार के अंदर हमने काम किया था। स्पॉट कलरलेस थे, फिर हमने स्प्रेयर की हेल्प से देखो हम स्प्रे कर रहे हैं यहाँ पे, सो दैट टू कन्वर्ट द जो इनविजिबल, जो पहले विजिबल नहीं थे उनको विजिबल बना देना, इनविजिबल स्पॉट्स इनटू द विजिबल वन। तो विजुअलाइजेशन टेक्निक यूज करते हैं, ये स्प्रेइंग स्प्रेयर को हमें यहाँ पे यूज करना पड़ता है। और भी डिफरेंट विजुअलाइजेशन टेक्निक है, UV लैंप आप यूज कर सकते हैं, लेकिन हम स्प्रेयर भी यूज कर लेते हैं। दैट इज द ट्राइपॉड स्टैंड, आपको बताया था। इसके ऊपर जो रखी है दैट इज द वायर गाज, जिसके ऊपर ये सर्कुलर जो हमने पोर्शन आपको व्हाइट व्हाइट दिख रहा है, कि हमने प्लास्टर ऑफ पेरिस की कोटिंग कर देते हैं इसके ऊपर, उसको ड्राइंग अप कर देते हैं और इसके ऊपर प्लास्टर ऑफ पेरिस की ऐसे कोटिंग बन जाती है। ऊपर जो है ये बीकर है बेटा। सो दैट इज द क्रोमेटोग्राफिक पेपर। इसको फिल्ट्रेशन के दौरान यूज करते हैं, वाटमैन फिल्टर पेपर बोलते हैं इसे। इसे सिंपल फिल्टर पेपर, सिंपल फिल्ट्रेशन करें तब भी आप यूज कर सकते हैं। ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर का पोर साइज बड़ा होता है। ये जो वाटमैन फिल्टर पेपर होते हैं इनका पोर साइज, ये भी डिफरेंट डिफरेंट पोर साइज के बेसिस के ऊपर आती है लेबोरेटरी के अंदर। फास्ट फिल्ट्रेशन करनी हो तो सक्शन पंप आप लगा के और बकनर फनल की हेल्प से आप फास्ट फिल्ट्रेशन कर सकते हैं। नॉर्मल फिल्ट्रेशन करनी हो तो सिंपल फनल की हेल्प से आप फिल्ट्रेशन करते हैं, जैसे आपको दिख रहा है। सो दीज आर द डिफरेंट सिरिंज फिल्टर्स। यहाँ पे वैक्यूम पंप है बेटा, और ये डिफरेंट आपकी जैसे फनल थी, दीज आर दी सिरिंज फिल्टर्स। इनमें ऊपर से आप सॉल्यूशन डालेंगे, नीचे फिल्ट्रेशन हो जाएगी। ऐसे क्रूसिबल्स के थ्रू भी आप फिल्ट्रेशन कर लेते हैं। नेक्स्ट आर द पीएच मीटर। देखो पीएच मीटर की हेल्प से हम कोई भी सॉल्यूशन उसकी पीएच को डिटरमाइन करते हैं। स्किन की पीएच कितनी है वो भी हम डिटरमाइन कर सकते हैं। तो दैट इज द पर्पस ऑफ द पीएच मीटर। अब देखें एसिडिक सॉल्यूशन पीएच कम हो गई, बेसिक सॉल्यूशन पीएच ज्यादा हो गई। तो पीएच मीटर की हेल्प से हम किसी भी सॉल्यूशन की पीएच को डिटरमाइन कर लेते हैं। बफर था तो पीएच 7 आ गई। डिफरेंट पीएच के बफर होते हैं हमारे पास। ये कंडक्टोमीटर कंडक्टेंस मेजर करने के काम आता है। सो दैट इज द कंडक्टोमीटर। कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन, जैसे एसिड बेस टाइट्रेशन की एक डिसएडवांटेज क्या होती है उसमें, जब हम मान लीजिए आपने एसिड बेस टाइट्रेशन की, फेनोल्फथालीन एज इंडिकेटर आपने यूज कर लिया, कलर चेंज होता है एट द एंड पॉइंट। तो जब कलर चेंज होता है फेनोल्फथालीन का, जैसे लाइट पिंक
उसका होता है बेसिक मीडियम के अंदर, एसिडिक मीडियम आते ही साथ वो क्या हो जाता है, कलरलेस। तो कलर चेंज हम एग्जैक्टली कई बार मेजर नहीं कर पाते, तो फिर हम ये टाइट्रेशन करते हैं। टाइट्रेशन कैसे करते हैं, इसमें हम कंडक्टेंस मेजर करते हैं कि नीचे फॉर एग्जांपल आपने HCl ले लिया, ऊपर से आप NH डाल रहे हैं, शुरू में NH लिया आपने, ये शुरू में कंडक्टेंस मेजर की, उसके बाद ड्रॉप बाय ड्रॉप आप ऊपर से क्या डालते चले जाते हैं, आपका NaOH, फिर आप कंडक्टेंस कंटिन्यूअसली मेजर करते चले जाते हैं आफ्टर द रेगुलर इंटरवल ऑफ द NaOH सॉल्यूशन। फिर उसके बाद सबसे पहले क्या होगी, आपकी कंडक्टेंस डिक्रीज होगी, उसके बाद फिर बढ़ेगी, या कई बार आपकी डिक्रीज होकर डिक्रीज ही होती, एंड सो ऑन डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द टू सॉल्यूशंस व्हिच आर बीन यूज्ड ड्यूरिंग द टाइट्रेशन। उसके बेसिस के ऊपर कंडक्टेंस में चेंज आना होता है। तो उस टाइप से हम क्या डिटरमाइन कर लेते हैं, इक्विवेलेंस पॉइंट आ जाता है बेटा यहाँ पे। देयर इज अ डिफरेंस, शार्प डिफरेंस बिटवीन द एंड और इक्विवेलेंस पॉइंट। जो रफ एंड रफ पॉइंट के जो रफ न्यूट्रलाइजेशन पॉइंट इज द एंड पॉइंट, और एग्जैक्ट न्यूट्रलाइजेशन पॉइंट के बारे में पता चल जाए, दैट इज कॉल्ड एज द इक्विवेलेंस पॉइंट। आप यहाँ पे देखें बेटा बड़े ध्यान से, आप यहाँ पे देख पाएंगे, ये आपके पास कंडक्टोमीटर है। इस कंडक्टोमीटर के अंदर ये देखो डिफरेंट प्लग्स हैं, यहाँ पे आप रीडिंग नोट करेंगे, डायरेक्ट कंडक्टेंस आ जाएगी यहाँ पे। इसके पीछे देखो डिफरेंट प्लग हैं, ये कंडक्टोमीटर ब्रिज को जोड़ने के लिए। ये थर्मोमीटर जो है नोब को, कि व्हाट इज द सॉल्यूशन ऑफ द टेम्परेचर, देखो ये प्रोब डाल रखा हमने इसमें, हम डायरेक्ट कंडक्टेंस मेजर कर सकते हैं। सबसे पहले जो सेल कांस्टेंट होती है, जो सेल है ये, जो भी इसके ऊपर वैल्यू लिखी होती है बेटा, फॉर एग्जांपल 1 लिखी हो, 1.01 लिखी, जो भी लिखी होती है, वो हम यहाँ पे अपने, देखो ये लिख रखा है सेल कांस्टेंट, इसकी हेल्प से वो हम यहाँ पे सेट कर लेते हैं सबसे पहली स्टेप के अंदर। तो इसको स्टैंडर्डाइज कर दिया हमने, सेल कांस्टेंट हमने फिक्स कर दी। उसके बाद हमने इस स्विच को कहां पे ले गए, कंडक्टेंस के ऊपर। डायरेक्ट रीडिंग आ जाएगी कंडक्टेंस की, इस प्लग को जहां पे लेंगे उसी फॉर्म में आ जाएगा। टेम्परेचर हम सेट कर लेते हैं, जो आज का टेम्परेचर, टेम्परेचर को सेट कर लें। ऑटोमेटिक टेम्परेचर भी सेट हो जाता है, या इस प्रोब की हेल्प से हम टेम्परेचर यहाँ पे सेट करेंगे। ऊपर आप देख रहे हैं बेटा यहाँ पे कंडक्टेंस है, तो यू कैन डिटरमाइन द कंडक्टेंस एट डिफरेंट रेंज। डिफरेंट रेंज के ऊपर देखो, जैसे रेंज बदलेंगे रीडिंग में चेंज आ जाएगा। तो एट द डिफरेंट डिफरेंट रेंज, मिली रेंज, माइक्रो रेंज, यू कैन डिटरमाइन द कंडक्टेंस ऑफ द सॉल्यूशन। फिर आप टाइट्रेशन करेंगे बेटा ऊपर से, और साइमल्टेनियसली जैसे मैंने अभी आपको पीछे बता दिया था, तो आप इस तरह से कंडक्टेंस को मेजर करना स्टार्ट कर देंगे। क्लियर हो गया बेटा, आ गया समझ में। नेक्स्ट इज द पोटेंशियोमीटर। इसमें ईएमएफ को हम डिटरमाइन करते हैं, व्हाट इज द चेंज इन द ईएमएफ। तो इसके अंदर आप क्या करते हैं, एनालाइट जो सॉल्यूशन है, इसमें एक प्लेटिनम इलेक्ट्रोड ली, कैलोमल इलेक्ट्रोड ली, दोनों को आप पोटेंशियोमीटर से क्या कर देते हैं बेटा, कनेक्ट। और फिर ब्यूरेट की हेल्प से आप सॉल्यूशन डालते हैं, टाइट्रेशन करते हैं, और उसके बाद हम ईएमएफ को डिटरमाइन कर लेते हैं पीएच आपके पोटेंशियोमीटर की हेल्प से। सो दैट इज द पोलरिमीटर हियर। जो पोलरिमीटर है, इसकी हेल्प से हम क्या डिटरमाइन करते हैं कि वेदर द गिवन सॉल्यूशन इज ऑप्टिकली एक्टिव और द ऑप्टिकली इनएक्टिव। अगर वो ऑप्टिकली एक्टिव है, सो व्हाट इज द चेंज इन द रोटेशन, एंगल ऑफ रोटेशन कितनी है, स्पेसिफिक रोटेशन को डिटरमाइन करने के ये काम आता है। अब आप देखो इसके बारे में आपको बता भी देते हैं, बड़े ध्यान से आप यहाँ पे देखें। देखो ये पोलरिमीटर है, ये आई से जिधर से हम देखेंगे, वो दूसरा एंड जिधर से सोडियम वेपर लैंप हमने लगा रखा है, देखो येलो लाइट है, इसको हम रोटेट करके देखो, ये हम क्या देखेंगे यहाँ से, जब भी हम इस आई पीस के थ्रू देखेंगे, तो देयर मस्ट बी द कंप्लीट डार्कनेस, हमें कंप्लीट डार्कनेस इसमें दिखनी चाहिए, कंप्लीट डार्कनेस। ये शटर है जिसके अंदर हम पोलरिमीटर ट्यूब रखेंगे, देखो ये पोलरिमीटर ट्यूब है, इसको हम ओपन करके सबसे पहले हम इसमें वाटर फिलअप करेंगे। सबसे पहले क्या फिलअप करेंगे बेटा, वाटर, और वाटर को यहाँ पे डालेंगे, और डालने के बाद अब दोबारा से इधर से देखेंगे, और कंप्लीट डार्कनेस होनी चाहिए, नहीं है तो आप दोबारा से इसको रोटेट करेंगे, देयर मस्ट बी द कंप्लीट डार्कनेस। नाउ द दैट इंस्ट्रूमेंट, दैट इज द पोलरिमीटर, गेट स्टैंडर्डाइज, वो बेटा आपका स्टैंडर्डाइज हो गया है। फिर जो भी सॉल्यूशन आपको बनाना, आप उसको बनाएंगे। फॉर एग्जाम्पल सुक्रोज सॉल्यूशन जैसे हम बना रहे हैं, जितनी कंसेंट्रेशन का, जो भी जितनी परसेंटेज का बनाना आप बनाएंगे, इसके अंदर आप वाटर एड कर देंगे, सॉल्यूशन आप अपना प्रिपेयर कर लेंगे। सॉल्यूशन बनाने के बाद आप क्या करेंगे बेटा, उसको फिल्टर कर लेंगे, ताकि कोई इंप्योरिटी है तो वो आपकी इंप्योरिटी बाहर निकल जाए। और उसके बाद आपका जो
पोलरिमीटर जो ये ट्यूब है इसके अंदर आप उस सॉल्यूशन को फिलअप कर लेंगे, लेकिन ध्यान रखें सबसे पहले स्टैंडर्डाइज आप किसकी हेल्प से करते हैं, वाटर की हेल्प से। लेकिन ध्यान रखें इस पोलरिमीटर ट्यूब के अंदर कहीं पर भी कोई भी एयर बबल नहीं रहना चाहिए। दैट इज द मोस्ट प्रिकॉशन, ये प्रिकॉशन रखनी बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले आप वाटर फिलअप करके इसको रखेंगे, और फिर आप यहाँ पे देखेंगे जैसे ही आप वाटर के द्वारा तो आपने स्टैंडर्डाइज कर दिया, जो सॉल्यूशन उन्होंने बनाया जब आपने देखा तो आपको दोबारा इसमें लाइट दिखाई देगी। फिर आप इस रोटेटर की हेल्प से इसको देखो रोटेट करेंगे, इधर टुवर्ड द राइट हैंड साइड और टुवर्ड द लेफ्ट हैंड साइड। जहां पे भी रोटेशन करने से हमें कंप्लीट डार्कनेस दोबारा मिल जाए, व्हाट इज दैट चेंज इन रोटेशन, वो चेंज ऑफ रोटेशन कितनी है वो हम नोट डाउन कर लेंगे। वो हम क्या कर लेंगे बेटा, नोट डाउन। ये था अननोन सॉल्यूशन, मान लीजिए सुक्रोज का। फिर हम काफी नॉन सॉल्यूशन बनाएंगे, तो नॉन सॉल्यूशन का भी हम सेम एक्सपेरिमेंट को हम क्या करेंगे बेटा, रोटेट करेंगे, डिटरमाइन करेंगे एंगल ऑफ रोटेशन फॉर द डिफरेंट नॉन सॉल्यूशन। जैसे टीचर ने तो बेटा आपको ये अननोन सॉल्यूशन सुक्रोज का दे दिया, जो अननोन सॉल्यूशन दे दिया उसकी कंसेंट्रेशन क्या है, तो लेकिन टीचर आपको बता देगा कि जो सॉल्यूशन हमने आपको दिया ये फॉर एग्जांपल 0.1 से 1% सुक्रोज सॉल्यूशन है। तो आप क्या करेंगे, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9 और 1%, इतने सारे सॉल्यूशन आप खुद बनाएंगे। उसके बाद सबसे पहले जैसे मैंने आपको बताया इसमें वाटर डाल के स्टैंडर्डाइज करेंगे। फिर आप सारे नॉन सॉल्यूशन को आप इसके अंदर रखेंगे पोलरिमीटर ट्यूब में, और हर एक की एंगल ऑफ रोटेशन निकालेंगे। फिर जो अननोन सॉल्यूशन टीचर ने दिया है, जिसका आपको नहीं पता कि उसकी कंसंट्रेशन क्या है, लेकिन इतना जरूर पता है कि उसकी कंसंट्रेशन 0.1 से लेके 1% के कहीं बीच में है। लेकिन व्हाट इज द कंसंट्रेशन ऑफ दैट अननोन सॉल्यूशन, अब अननोन सॉल्यूशन को आप पोलरिमीटर ट्यूब में डालेंगे और फिर उसकी आपकी उसकी एंगल ऑफ रोटेशन निकालेंगे। फिर सिंपल प्लॉट द ग्राफ, आप सिंपल कंसंट्रेशन ऑफ एंगल ऑफ रोटेशन के बीच में ग्राफ प्लॉट करेंगे, और फिर आपका जो अननोन सॉल्यूशन है उसकी भी आप कंसंट्रेशन डिटरमाइन कर सकते हैं फ्रॉम द हेल्प ऑफ द ग्राफ। क्लियर हो गया बेटा, आ गया समझ में? सो नेक्स्ट एक्टिविटीज दैट इज द एब्स रिफ्रैक्टोमीटर, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को डिटरमाइन करने के काम आता है। इसमें देखो बेटा करते क्या है, बड़े ध्यान से देखेंगे। इसके अंदर हम ये करते हैं बेटा कि आपके जो एब्स रिफ्रैक्टोमीटर है ये प्रिज्म है, डबल प्रिज्म। जो ये प्रिज्म है इसको आपने ओपन किया और यहाँ पे देखो हम ड्रॉप्स डाल देते हैं। सबसे पहले वाटर ड्रॉप्स डालेंगे और इसको हम क्लोज कर देंगे। फिर यहाँ पे इस, और आप किस टाइप से सेट करेंगे, आपको हाफ डार्क हाफ लाइट दिखना चाहिए बेटा, हाफ डार्क हाफ लाइट। फिर वो रीडिंग आप नोट कर लेंगे। सबसे पहले वाटर लिया तो वाटर की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डायरेक्टली आप नोट डाउन कर लेंगे। तो रीडिंग आई, मान लीजिए आपके पास टेबल है उसमें आपको पता है दैट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द वाटर। मान लीजिए 1.33 इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द वाटर एट 25 डिग्री सेल्सियस। अगर उसमें कोई चेंज आ गया तो दैट इज कॉल्ड एज द एरर, कि ये इंस्ट्रूमेंट के अंदर इतनी एरर है। फिर जो भी अननोन सॉल्यूशन आपको दें, वेदर इट इज विद एसीटोन और द अदर सॉल्यूशन, आप उसकी दोबारा से रिफ्रैक्ट क्या निकालेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आप निकाल सकते हैं। फिर स्पेसिफिक रिफ्रैक्टिविटी आप फार्मूले में पुट करके निकाल देंगे। सो दैट इज द एब्स रिफ्रैक्टोमीटर। क्लियर हो गया बेटा, आगे बात समझ में? सो दैट इज द शेकिंग मशीन। देखो लेबोरेटरी के अंदर आपने देखा केमिकल काइनेटिक्स का एक्सपेरिमेंट हो गया, डिफरेंट और एक्सपेरिमेंट होते हैं, सोलवेंट एक्सट्रैक्शन वाले एक्सपेरिमेंट होते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन लॉ वाले एक्सपेरिमेंट होते हैं, जिसमें हमें शेकिंग करनी पड़ती है। तो हीटिंग विद शेकिंग, देखो यहाँ पे हमने हीटिंग मेटल है और उसके ऊपर ये शेकिंग मशीन है, ये शेक होती चली जाएगी, सॉल्यूशन कंटिन्यूअसली आपके शेक होते चले जाते हैं। सो दैट इज द शेकिंग मशीन। दैट इज द सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन। आपने ये टेस्ट ट्यूब अपनी रखी इसके अंदर, और फिर जैसे हमें फिल्ट्रेशन करना होता है, जब भी एसिड बेसिक रेडिकल की करें तो जो पीपीटी बन गए उनको हम कैसे फिल्टर करें, तो अच्छे से नहीं कर पाते। इसलिए हम क्या करते हैं, उस टेस्ट ट्यूब को सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन में रख के और सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन को ऑन करते हैं। जैसे ही ये सेंट्रीपिटल फोर्स चलता है तो पीपीटी एकदम वेरी फास्ट टेस्ट ट्यूब के बॉटम के अंदर सेटल डाउन हो जाते हैं। ऊपर वाला सॉल्यूशन आपने अलग किया, नीचे से पीपीटी रह गए। सो दैट इज द पर्पस ऑफ दैट सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन जनरली ड्यूरिंग द एसिड बेसिक रेडिकल्स। सो दैट इज द फिल्ट्रेशन थ्रू द वैक्यूम पंप। हमने बताया था, देखो वैक्यूम पंप हम साथ में लगा देंगे और फिर जैसे फिल्ट्रेशन करेंगे तो फास्ट फिल्ट्रेशन होगी। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया था। ये बकनर फनल है, यहाँ पे निकल क्रूसिबल होती हैं। जब भी हम एस्टिमेशन करते हैं, एस्टिमेशन ऑफ द निकल, एस्टिमेशन ऑफ द एल्यूमिनियम, उसके दौरान जो भी हमारा प्रोडक्ट बनता है, जैसे निकल की करें तो निकल डीएमजी,
जो रेड कलर के बन जाते हैं। तो हम ये निकल ये क्रूसिबल लेते हैं और इनके थ्रू हम फिल्टर करते हैं। पहले इस खाली का ड्राई करके इसका वेट ले लेते हैं, फिर जो निकल डीएमजी बना उसका वेट ले लेते हैं, फिर डिफरेंस के थ्रू हमें पता चल गया कि निकल डीएमजी कितना बना। सो दैट इज द पर्पज ऑफ दैट वैक्यूम पंप, क्योंकि हमें इसको ड्राई अप भी करना होता है। अगर कंप्लीट ड्राई अप ना हो तो फिर हमने बताया था ओवन होते हैं, ओवन के अंदर हम इनको रख देते हैं, जो मॉइस्टनेस होती है वो निकल जाएगी, और ड्राई होने के बाद फिर से हम वेट ले लेते हैं। और फिर भी देखें तो थोड़ी देर और ड्राई कर देते हैं, फिर से वेट ले लेते हैं, टू सी दैट वेदर द कंप्लीट ड्राइनेस विल अकर और नॉट। अब देखो थोड़ा सा हम आपको रिवीजन करवाते हैं जो अभी तक हमने आपको बताया, बड़े ध्यान से आप देखना। देखो दैट इज द वेइंग बैलेंस, steps, that is a beaker, that is a stirrer for mixing of the solution, that is a storage bottle or the reagent bottle, that is the storage bottle, funnel, जिस जो आपकी सॉल्यूशन आप बनाते हैं डिफरेंट, that is a petri dish, how to measure, that is the spatula, spatula की हेल्प से ही आप पेट्री डिश के ऊपर रख के किसी भी सब्सटेंस का वेट कर सकते हैं, उसको मेजर कर सकते हैं। दैट इज अ ग्लास स्टीरर, हमने आपको पहले बताया था, टू स्टीर द सॉल्यूशन, टू मिक्सिंग अप द सॉल्यूशन, वी जनरली यूज दैट स्टीरर। दैट इज अ मेजरिंग फ्लास्क, जितने भी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन है वो हम मेजरिंग फ्लास्क से बनाते हैं। देखो इस पर्टिकुलर 100 ml की ये सॉल्यूशन आपका बन गया। दैट इज द कोनिकल फ्लास्क और द अर्लन-मेयर फ्लास्क, जनरली बीन यूज्ड ड्यूरिंग द टाइट्रेशन। अपर वन इज द ब्यूरेट, दैट इज द पिपेट, पिपेट की हेल्प से अर्लन-मेयर फ्लास्क में आपने सॉल्यूशन एड अप किया था। दैट इज द ड्रॉपर हेयर। फाइनली जो टचअप आप देते हैं इसमें लेवलिंग अप द सॉल्यूशन के लिए, दैट इज द स्पैचुला व्हिच हैज टू एंड्स। देयर इज अ फिल्टर पेपर, फिल्टर पेपर के अपने स्पैचुला की हेल्प से कंपाउंड को मेजर किया। देयर इज द वॉश बोतल फॉर द लेवलिंग ऑफ द सॉल्यूशन एट द फाइनल स्टेज, जब आप सॉल्यूशन को लेवल अप करते हैं। मेजरिंग फ्लास्क जो थी आपकी, उसके अंदर देखो ये मेजरिंग फ्लास्क आपकी, इसको फाइनल देखो ये मार्क मार्क तक एग्जैक्ट पहुंचाने के लिए आप यूज कर, दैट इज द मेजरिंग सिलेंडर। इसमें एग्जैक्ट इसको पहले आप ग्रेजुएटेड कर देते हैं, ग्रेजुएटेड तो ये है ही, उसके बाद आप कैलिब्रेट कर देते हैं, एग्जैक्ट सॉल्यूशन आपको पता चल जाए। दैट इज द ब्यूरेट हियर, ड्यूरिंग द टाइट्रेशन दैट ब्यूरेट इज यूज्ड। ड्रॉप बाय ड्रॉप जब आप करते हैं कलर चेंज आ जाता है। दैट इज द आयरन स्टैंड ऑन विच देयर इज ए क्लैंप। तो डिफरेंट गिलास एपरेटस को क्लैंप करने के लिए आप स्टैंड को यूज करते हैं। दैट इज द पिस्टल मोर्टार, पाउडर्ड फॉर्म में किसी भी कंपाउंड को कन्वर्ट करने के लिए, क्योंकि जब मेल्टिंग पॉइंट कर डिटरमाइन करते हैं तो हमें यूज करना। दैट इज द टेस्ट ट्यूब होल्डर, जब भी आप हीटअप प्रोसेस चलाएंगे तो आप टेस्ट ट्यूब को टेस्ट ट्यूब होल्डर की हेल्प से ही क्लैंप करेंगे, डायरेक्ट आप उसको नहीं पकड़ेंगे। दैट इज द सेपरेटिंग फनल, इसके अंदर आपने दो सॉल्यूशन डाले, डिफरेंट लेयर्स देखो आपकी बन गई, तो डिफरेंट सॉल्यूशंस को आप ऐसे सेपरेट कर सकते हैं। दैट इज अ फिल्टर पेपर, डिफरेंट टाइप ऑफ फिल्टर पेपर होते हैं, ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर, वॉटमैन फिल्टर पेपर, ये स्पैचुला की हेल्प से कंपाउंड। दैट इज अ थर्मामीटर, जनरली बीन यूज्ड ड्यूरिंग द डिफरेंट एक्सपेरिमेंट, जैसे आपने सिंपल डिस्टिलेशन के दौरान, दैट इज द बेकमान थर्मामीटर कहलाता है आपका। दैट इज द कंडेंसर, कंडेंसर को देखो आप यहाँ पे क्लैंप करते हैं, क्योंकि जितने भी फ्यूम्स आते हैं उनको दोबारा कंडेंस करके लिक्विड फॉर्म के अंदर ही इसको स्टोरेज टैंक के अंदर स्टोर करना होता है। लोअर एंड से वाटर एंटर करता है, अपर एंड से बाहर हीटअप होके पानी बाहर आ जाता है। तो दैट इज द, हमने ये सारा थोड़ा रिवाइज करवाया पीछे जो मैंने अभी तक आपको बताया। सो थैंक यू, दैट ऑल अबाउट द डिफरेंट apparatuses which been generally you will found in the chemistry laboratory। तो ये डिफरेंट apparatus होते हैं जो केमिस्ट्री लेबोरेटरी के अंदर जनरली आपको मिलते हैं।